Just give me 2 minutes. Hello and welcome everyone. We have our guest of honor today, Professor Dr. Ishtiaq Ahmed. He is a Swedish political scientist and author of Pakistani descent. He obtained a PhD in political science from Stockholm University, where he is currently Professor Emeritus. During 2015 to 2019, he was visiting professor at the Government College University, Lahore. And in 2013 to 2015, he was visiting professor at LUMS. He is an honorary senior fellow of the Institute of South Asian Studies at the National University of Singapore and was visiting research professor at the Institute of South Asian Studies. He was also visiting professor at the South Asian Studies program, the National University of Singapore from 2007 to 2010. He has published several books, including the award-winning Jinnah, His Successes, Failures, and Role in History, published by Penguin New Delhi in 2020, which won the Best English Non-Fiction Book Award at the Valley of Words Festival, Dehradun 2021. Jinnah, His Successes, Failures, and Role in History has also been published in Pakistan in 2021 by Vanguard Books, Lahore. Pakistan, the Garrison State, Origins, Evolution, Consequences, 1947 to 2011. This book has been published by Oxford University Press in 2013. His book, The Punjab, Bloodied, Partitioned, and Cleansed, Unraveling the 1947 Tragedy through Secret British Reports and First-Person Accounts. It was published by Oxford University Press. It won 2 National Best Non-Fiction Book Prizes, Karachi Literature Festival Coca-Cola Prize and UBL Jung Group Literary Prize. Its Indian edition was published by Rupa Books. Urdu, Hindi, and Gurmukhi Punjabi editions of the book have also been published. And this book also won the Best Book on Punjab award from Punjabi Parchar at the Vaisakhi Mela in Lahore. I have his one more book, State, Nation, and Ethnicity in Contemporary South Asia as well, published by Fiction House. His most recent book, published in January 2022, Contribution of Pre-Partition Punjab to India Cinema, is published by Akar Books, Delhi. Sir, we are eager to learn about the works of fiction and the facts of partition, and your most recent book about the pre-partition Punjab's contribution to Indian cinema. Sir, my Fiction Book Club members and students welcome you to our session. I am deeply touched, deeply moved by your very kind presentation of my achievements as a writer, as an author. I think this has been the fullest presentation of the important books relevant to our discussion today. I have always said that reality is stranger than fiction. Fiction is, after all, imagination without limits. But the imagining person, I would imagine, must have some limits somewhere. But if you go into the world of reality and see how things happen, one is amazed at the human ingenuity to
do things which are unpredictable. What I learned from my research was that whereas generalizing things is a legitimate way of identifying, classifying, and categorizing phenomena, stereotyping them is unjustified. Like, for example, one can say that Muslims generally are very acceptable when it comes to slogans like La ilaha illallah and so on and so forth. This you would notice is a common trait among Muslims. But to believe that everybody is excited equally would be the wrong thing to do. Equally among Hindus, and they don't like it when I tell them, but they have this sociological problem. Who has eaten what should be eaten, what should not be eaten, who can you touch and who can't you touch. So I say, actually, it's not me, it's either Dr. Ambedkar or Jawaharlal Nehru who said that Muslims are ideologically fanatics and Hindus are sociologically fanatics. So, and I wonder whether this is sociological or this is stereotyping. So this is a very difficult thing to decide. But what I'm trying to say is literature defies everything we read in doctored history, you know. You look at the Pakistan studies literature, from beginning to end, it is a pack of lies. I would insist saying this, where facts are there, but they are twisted out of context and presented them in an entirely slanted manner. Indian history used to be fairly reliable until now when the BJP has taken over. And they have learned the skills from Pakistan and they are doing the same to their national narrative. So, what is fiction and what is fact is always a question of integrity and of your ability to evaluate source material. In fiction, you are totally free to do whatever you want, but you can't do it when it comes to factual, empirical studies. But my Punjab book, I mean, this is the main book that we probably will talk about, has so many surprises, unbelievable surprises that, you know, let me read here Albert Camus, you know, the French Nobel Prize winner. He wrote in 1957, "Fiction is the lie through which we tell the truth." Fiction is an imagined situation, but an author is actually trying to tell some truth, because the truth telling may not be possible because of so many reasons. I have said I wrote the book, The Punjab Bloodied, Partitioned and Cleansed, to tell the truth about all the lies about what had happened. And out of it, then you come such stories which are unbelievable. And you know, if some of you have read my book, then we can discuss them. Which stories you have found particularly interesting. And if you have not read, I can present you a few. So I don't know how should we proceed now in our discussion today. Whatever method you choose, I'm very willing to adhere to it. Sir, I have started with your Garrison book, Pakistan, Okay. the Garrison State, and I Yeah. have not completed it. So this is my first book that I'm going to read, and then I'm going to Punjab and then Jinnah. So I see. yeah. So sir, forum is yours, and your latest book. You can also talk about that, because my fiction book club was very excited when they heard the name Punjab Cinema. So you can talk about your book, and we also have a lot of questions that students have. So forum is yours, sir.
Thank you very much. This has been a very friendly way of doing it. Then I have a free choice to explain how have I done my research. Maybe that will help. You know, my doctoral thesis is on the concept of an Islamic state and analysis of the ideological controversy in Pakistan. In Pakistan, anybody can get up and take a position on Pakistan, the Islamic State, and there are no two views which are identical. So I wanted to look at what was common to them and what was problematic with them. And I showed that we Muslims are very good at the art of playing with words. The words do not have content, but the words are so attractive because I think the basic imprint on us is Ghalib and these great poets. You know, we approach history and facts through a poetic prism. This is one problem. So if you look at the positions people have taken, anything is possible and you can call it an Islamic state. I have shown that Justice Munir could argue on the basis of one hadith, that the Prophet Muhammad said that when I tell you something about the world, then I'm just a human being. But when I tell you something about spirituality, then I am speaking the eternal truth. And so he argues this way the Prophet divided the secular from the spiritual. Now, it's a convenient argument. You go to the other extreme I have shown, and there used to be an organization which is now defunct, headed by another justice of the Supreme Court, Justice Kekaus, who and the people around him argued that in Islam, everything is given. So there is no scope for making laws. There is only scope for interpreting and implementing laws. So here, there is no scope for human innovation. Then, if you look at Maududi, he has done what is known as a split. He calls it theodemocracy. That in those areas where God has spoken explicitly, you know, in the Quran and maybe Hadith, those are forever and you can do nothing about them. But where the Quran is silent, human beings can innovate. So there is scope for human lawmaking. Everything is not covered. And so on and so on. I've looked at Islamic socialists saying that the Quran doesn't have a position on, it says property should be distributed equally. Then there are people who are saying in Islam, there is no limit to how much property you can hold. So in this way, this debate can never end. You know, people can take any position because unlike the Pope, who has a monopoly over Christianity, or let's say the Protestant church and so on, Islam in one way is free for all. If you ever get time, just look at on the videos what the ulama are saying about one another. The Wahhabi find all the rest worthy of burning in hell. The Barelvi have this identical position about all others. The Shia think that none of them is a good Muslim. And so on and so forth. I just include myself and I can exclude all of you and feel good about it. So that's the art. So that's my first book. But during writing this book, I was curious, why did Pakistan come into being? Was it to implement Islamic laws? Was it because Jinnah said on 11th August, in this great state of Pakistan, Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims? Not in a private sense, because that is a matter of private faith, but as citizens of the state. And then people wondered, and I wondered,
Why did you need to have India partitioned and have 1 million people killed, at least 15 million uprooted and driven from their homes, if you were going to have a secular state? This is what the Congress was offering already all along. So I ended up by saying that whatever argument you take on the state, an Islamic state cannot be a democracy. Things like Islamic democracy, Muslim democracy are democracies with a big question mark. A democracy of the 20th, 21st century has to be secular. It has to separate the faith of people from the business of the state. And if it doesn't, then it's not a democracy in the modern sense of the word. It is a hyphenated democracy, Muslim democracy, which means majoritarianism. Who is a Muslim? I am born a Sunni, so I am a Muslim. You are not, you are a Shia. And so on and so forth. And if you by chance are an MD, then you're already expelled from the community. And they are actually expelling one another all the time if you go and listen to them. So I said this debate leads nowhere. It's like Jamshed Sahab, when you are driving on the road, the way people cut around you, you know, it's unbelievable. Nowhere in the world I have seen people do these tricks. But this is the way we think. The road is the way we think about politics. That's the way I look at it. Yes, Pakistani politics is how you behave on the road. Yes, sir. And sir, you differentiated between tactical thinking and strategic thinking. One is short-term thinking and long-term thinking. And second, on the point of minorities and people of people, those who belong to the minority sects, just like Qadianis, Shias, and Ismailis. Most of the time I have heard you talking about how they were influential in making Muslim leagues, and it was the landlords who were, at the forefront of creation of the country. And Qaid-e-Azam, in his personal life, he was much more secular, but he used religion to create this Pakistan. So you have already explained my main thesis. I think Jinnah was a lawyer, and a lawyer goes to court to win a case. So when you are in a court, the lawyers lie, they twist, they manipulate. That's the art of a lawyer. He is there paid to win the case, and Jinnah won the case for Pakistan. But that created a mess as well. The Islamists can find many arguments of Jinnah which are Islamic. The secular people can quote the 11th August speech. The Muslim modernists can say that Jinnah Sahab said Pakistan will be a Muslim democracy, so it will be an ideal democracy. And you keep on fighting, what did Jinnah really want? And I've said Jinnah wanted the partition of India, that's all. What sort of a Pakistan will emerge? He had no vision at all. So now we have covered the Jinnah book as well. But let me come to the Garrison State book. Why did I have to write it? The question was very simple. On the same day, two states came into being, India and Pakistan. How do we explain that India, despite the BJP, always goes through free and fair elections, and the party which wins the government, majority, forms the government? And we also were born the same day. In fact, we have also created a myth by doing it on the 14th. The 14th is not when the British transferred power, may I tell you. They transferred power on the 15th. On the 14th of August in Lahore, the Punjab governor, Sir Evan Jenkins, was writing the last telegram at 10:30 in the night. So till the 14th night, the British were still in charge of the Indian subcontinent. Only as a ceremony on the 14th, they had, inaugurated
the Constituent Assembly and so on. But actual transfer of power is on the 15th. And for the first 2 years, Pakistan used to celebrate its Independence Day on the 15th of August. So here is another manipulation of facts. Pakistan is a labyrinth of as many twists and whatever you want to do it. So why did I write to find out why could Pakistan not establish civilian supremacy, whereas India could? And the answer is that the Pakistan Muslim League was no political party at all. It was a collection of regional strongmen and leaders who only wanted to save their landowners' land holdings because the Congress had threatened that they will abolish zamindari. Simple as that. So the Sindhi landlord, the Punjabi landlord, and the rest came together to prevent an India coming into being based on socialist ideas. And look at, in India, the land ownership in Punjab, East Punjab, is from 2 to 5 acres mostly. A few big pieces, 17, 20 acres, that's all. And in Pakistan, the first land reform was by President Ayub Khan. It was 500 acres of irrigated land and 1,000 acres of unirrigated land. When Bhutto came, he went out with 150 acres of irrigated and 300 acres of unirrigated land. But he created another twist. He said that he has consulted Islamic scholars and they have told him then in Islam, ownership is by the individual, not by the family. So by another subterfuge, I would say, the same family, let's say I have 3 children, I have my wife. So if I have 500 acres, I give 100 acres to each one of them. And nothing is actually surrendered. And the landlords, what they did was even transferred their property to their servants, who poor people, were dependent on them, so that the land was not taken and given to the actual tillers of the land. So Bhutto's reform was also fraudulent in a way. But still the ceiling is 150, later 100 acres. And when Zia came, he said in Islam, there is no limit on ownership of land. So you still have feudalism. And look at your assembly, who all are elected. Why come people with landed property are predominantly there? And the brotherly connections and so on are so important. So I have argued that Pakistan from day one did not have the political institutions to be a democracy. And the army was the only institution and the civil service which could hold Pakistan together for right and wrong. But once the army came to power in 58, there is a saying in English that once you taste blood, it becomes your habit. After 58, they realized there is so much power running the army, but also running the state. And look at all the national wealth which they claim and which is not open to discussion in the in the Pakistan National Assembly. So what is corruption? If this is not corruption, this is unfair use of national resources just to maintain a huge army, which has never won any war. Out of the 4 wars Pakistan conducted, and it's not me, it's Air Marshal Asghar Khan, who is the authority. He says all wars were started by Pakistan. And none of the wars did they win. One war they actually lost, that in East Pakistan. Sir, let me present one counter argument, if you could allow. Yes, yes. Now that we have Pakistan, we have to work for its progress, right?
So Good. why not keep believing in our fiction? Why should we listen to the facts that your research has shown? Why not keep believing in fiction? It is much more cozy and it will maintain the social cohesion in Pakistan. So how do you respond to this argument? I think things which exist uh, in fiction are fictitious. Okay. I say Pakistan came into being finally through a bloody partition of India. Since then, Pakistan is a bona fide member of the United Nations. It has a territory after 71, which it controls. It has a huge army, which is well armed. It's a nuclear power state. It has a bureaucracy which is very corrupt, but it works. People go to work, go to school, do their things. So the state is functioning even when it is a very incompetent state. So there is no question about questioning the existence of Pakistan. It is upheld by international law, and nobody ever wants Pakistan to disintegrate, not India. I have talked to Indians, they said in 47, our leaders believed that if Pakistan came back, then it would be much better, but not anymore. Imagine 220 million Muslims with no interest in democracy joining India and destroying their democracy, which they have managed so well. So what was in 47, maybe they were hoping this will not do. Now they would do like this and said, keep your Pakistan, just don't threaten us. And I say, then you don't threaten us. Let's be peaceful neighbors. Simple as that. You see, there is no state which is a natural state. The natural state is a state which doesn't exist. All states are human artifacts. So Pakistan is also a state with its territory, with its people, with its government. It has all the right to exist. But if you exist under law, international law, you have to adhere to the requirements of international law. You can't send non-state actors into Bombay and here and there and suicide bombers and say they are non-state actors. No. Under international law, anything which happens from Pakistani territory, whether ordered by the state or not, is Pakistan's responsibility. So all those terrorists who are internationally, known as classified as terrorists, their networks should be destroyed. Pakistan should become a law-abiding state, and that's all. So I don't think the fiction helps us very much. It is not a fiction, it's a reality that there is Pakistan. The fiction was that we needed a state to protect Islam and Muslims from destruction. This is what Jinnah said. The problem is that in India, the 220 million Muslims, for them, for the Hindu right wing, are a headache. They want to do away with them. मेरी तो argument ये है, had we stayed on, the whole of India would be yours, bhai. Sir, have you watched PK movie? PK. I have, yes. Yeah. Amir Ali ki. Yeah. Amir, So, yes, Amir Amir Khan Khan. ki. Yes. And sir, I always argue that PK movie you cannot make in Pakistan or in today's India, perhaps, but they have a strong tradition of tolerance. And one of the ways is through fiction, through cinema, through your novels. Here you can find Naseem Hijazi's and other novels. So this is one narrative. Fine, you can go with it. But there should be counter narrative that should be allowed. If you allow the counter narrative, then people can figure out what's the truth through fiction. So you see, yeah, I agree. I entirely agree. You see, the problem of Hinduism historically has been the caste system. On the other hand, Hinduism doesn't have one book, one prophet around which to organize their whole
belief system. A Hindu can be an atheist and be a Hindu, and be a non-practicing Hindu, and so on. And so they can be very tolerant. When I was in India, I've been to South India and so many places. I went to Chennai, which is Madras, the old city, deep in the south. And some Punjabi Hindus found out that I was there from Lahore. So one of them was a follower of some guru. He took me there, and I saw that the highest guru they had was Ghausul Azam, Sheikh Abdul Qadir Jilani. Yes. Then there is a group of Hindus who are called Hussaini Brahmins. They are mostly from Punjab, yes. They believe that their ancestor, Sidhu Rahab Dutt, fought on the side of Imam Hussain at Karbala. I think it's a legend, but for Hindus to start believing in this is possible. Then there are Hindus who believe that Prophet Muhammad was one of the avatars, one of the gods who came back. For Hinduism to accept anyone who reaches high towards God is possible. You know, people when this is funny. They keep writing to me, some of them, sir, आपके बड़े जो है ना वो जरूर ब्राह्मण होंगे क्योंकि इतनी अकल की बात आप कैसे करते हैं? और मैंने कहा यार बिल्कुल नहीं, we are very ordinary people. My grandfather was a peasant cultivator, उनकी थोड़ी सी जमीन थी. He worked hard और उन्होंने अपनी औलाद को, अपने बेटों को चांस दिया, हम आगे बढ़ गए हैं. But for them, anybody who reaches up there must be a Brahman. So ये उनकी greatness है. Parsi, यानी the Persian speaking people, when the Arabs came, where did they run away? They came to India. और ये टाटास और ये सब बड़े बड़े उनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो पारसी हैं. कहते हैं इमाम हुसैन के कुछ फैमिली जो है वो सिंध आ गई थी तो उनको प्रोटेक्शन मिली, वो भी तो हिंदुस्तान में मिली ना. Christians, you know, they were being persecuted, and Saint Thomas, one of the disciples of Jesus, is believed to have come and settled in southern India. वो जो Syrian church है ये उन्हीं के साथ associated है. So Hinduism has no problem if you are a Muslim as long as you don't disturb them. लेकिन Muslims have a problem wherever they are. I must say that. I live in Europe. The only people who create trouble here are Muslims. I honestly tell you this. I am a Muslim, born Muslim. No problem with that. लेकिन हर जगह ये तंग जो करते हैं ना लोगों को दुनिया में, ये अब मुसलमान ही करते हैं. तो एक प्रॉब्लम मुसलमानों का तो है ना. They believe that they are the finest community of the world and they have a right to rule the world. उसे कहते हैं if your belief about yourself and your actual situation, there is a big gap, then you become very aggressive. You can't accept that we are at the bottom, but according to our belief, we should be on the top. That is why they create problem wherever they are. Sir, I have two comments to make. You Yes. talked about Muslims living in a society that is not Muslim. And I have seen with my own eyes when I was in US that in the Islamic Center, both Shia, Sunni, there was no distinction. They were together and they were very happy to see one another, and there was no distinction. The distinction occurred when they come to Pakistan or when Islam is in a majority. So this is my personal view. I used to go there a But lot. very true. Yeah. The same. Hindus, Muslims, and Sikhs, Punjabis, if they meet in Sweden, they can spend the whole evening talking, joking, Punjabi abuses, Punjabi whatever. हाँ जी, no problem. Hindi speaking, Urdu speaking, अगर मिल जाएं, they have a great time, Gangetic plan. Bengali Hindu and Bengali Muslim get along very well. Conferences में हमने यही देखा है, Bengali एक जगह हो जाते हैं,
पंजाबी एक जगह हो जाते हैं और उर्दू स्पीकिंग हिंदी स्पीकिंग जो लॉट है वो अपना ग्रुप बना लेता है, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं। सो एक्चुअली लैंग्वेज की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। मैं तो जब पंजाबी थोड़ी सी सुनता हूँ ना, ये गलियों में ये स्वीडन की, तो आई गेट वेरी अट्रैक्टेड। जाहिर है आई एम ऑल्सो अट्रैक्टेड टू पीपल स्पीकिंग उर्दू बिकॉज दैट्स अवर सेकेंड लैंग्वेज, लेकिन पंजाबी तो गट में है ना मेरे। सो ये जावेद अख्तर ने कहा था कि लैंग्वेजेस डोंट हैव अ रिलीजन, लैंग्वेजेस हैव अ रीजन। पंजाबी हिंदूज मुस्लिम्स एंड सिख्स कैन स्पेंड 12 hours टॉकिंग एंड कीप ऑन टॉकिंग। मुझे एक अरब के साथ बिठा के दे बात करवा दो, हाँ मस्जिद में नमाज हम इकट्ठे पढ़ लेंगे, बट बिकॉज ऑफ नॉट शेयरिंग एनी कल्चरल वैल्यूज ये वो। और जो अरब हैं सऊदी अरेबिया में जो पाकिस्तानियों को इल ट्रीट करते हैं, वो अगर किसी ने जाके देखा है तो अच्छा सच नहीं बताते कि यार आप यूं देखें, in Sweden or in Europe now, after 3 years, Sweden, some places 4 years, you can become a full citizen. And I know many Muslims, 5 of them at least are in the Swedish parliament. One is a minister who could have become the prime minister. He's an Iranian, very smart young man. There is the head of the left party is also an Iranian Kurd, a lady. Then there are 2 Turks in the parliament, and then one man from Bosnia, all Muslims, elected because they joined some party and they were good at their work and they got elected to the parliament. So Western democracies is inclusive and they don't give a damn about your religion. They look at your qualities. जो प्रेजुडिस लोग हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा, 10-20% हर जगह पे फॉरेनर्स को पसंद नहीं करते। पाकिस्तानी एक दूसरे को पसंद नहीं करते यार, दूसरों की छोड़ दो। जो थोड़ी सी अंग्रेजी जानते हैं वो उर्दू स्पीकिंग और पंजाबियों से दूर रहते हैं, वो बताते ही नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं, या फैक्ट वो कोई और चीज बता देते हैं ताकि ये ना लगे कि ये हम लॉट है। I have met Swedish girls who say, sir, we don't understand any Pakistani we meet. He claims to be a prince. Say, how many princes do you have? और मैंने कहा, they are soldiers of fortune. इन्होंने मैट्रिक पास नहीं की होती, इधर उधर से दिकड़ी लगा के ये आ जाते हैं। तो लड़कियों के साथ ये थोड़ी बताएंगे कि हम भीख मांग रहे हैं, वो तो प्रिंस कह के अपनी बात बनाएंगे ना। So we are very good at all this. These are lies we believe in. These I call them pious lies. Pious fiction. lies हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंड सर अभी पंजाब में अभी ये किस हद तक ये प्रोमलगेट हो गया है, लेकिन ये इट इज इन द एयर के पंजाब में जो सेग्रीगेटेड कॉलेजेस को सेग्रीगेट कर दिया जाएगा जेंडर बेस पे। उससे फिर ये हो सकता है कि हमारे जो पाकिस्तानी हो उसने चूंकि फीमेल से कभी इंटरेक्ट नहीं किया, तो वो जब स्वीडन पहुंचेगा तो सर आपके लिए बहुत बड़े मसाइल खड़े कर सकता है, क्योंकि आप जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और वो फिर दूसरे तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बहुत कर रहे हैं ऑलरेडी। मुझे याद है जब पाकिस्तानी आते थे ना शुरू में, तो आई वुड इनवाइट देम, ये ऑफिसर्स हमारे ये वो ना किसी 4 हफ्ते के कोर्स पे, एंड आई वुड इनवाइट देम होम। फिर मैंने देखा कईयों ने आके जब हमने खाना सर्व किया तो पूछते हैं ये हलाल है। मैंने कहा यार बात सुनो, यहाँ पे हलाल वाली इजाजत ही नहीं है, और उलमा का फतवा है कि अगर इजाजत ना हो तो जैसे भी आप गोश्त है या चिकन है आप खा सकते हैं। दे रिफ्यूज टू ईट। उसके बाद मैंने इनवाइट करने ही उन्हें बंद कर दिया। अगर इस किस्म के आपके ऑफिसर्स हैं, एंड आई टोल्ड देम दिस इज अ फतवा, हनफी फतवा, कि जहां पे आपको इजाजत नहीं है तो फिर ठीक है, जिस तरह भी है यू कैन ईट द मीट, इट्स इस्लामिक लॉ के मुताबिक अलाउड है। लेकिन इनकी इतनी पागलों वाली ट्रेनिंग हुई है, दे कांट डू इट।
तो अब मैं, और दूसरी बात है, एज ए पंजाबी अगर मैं दाल सर्व कर दूं तो हमारे पंजाब में कहा जाता है ऐसे बंदे को 7 पुश्तों तक लोग फॉरगिव नहीं करते कि ਇਹਦੇ घर गए सा तेने दाल खवाई सी। हाँ जी, तो करे कि आदमी, हाँ जी, दाल आप सर्व कर दें तो हमारे बड़ों के अंदर तो ये तो कंजूस होने की, कमीने होने की निशानी है ना। गोश्त सर्व करो तो ये खाते नहीं है। तो मैंने कहा यार बस ठीक है, आई डोंट, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कॉफी पिया ਦਿਓ, काफी है, दैट्स इनफ। अच्छा सर, यहाँ सो पे दिस इज हाउ। हाँ सर, मेरे जो सगे चचा हैं, ही इज अ स्वीडिश नेशनल। वो जब भी पाकिस्तान आते हैं उनको झूठ नहीं बोलना पड़ता, वो कहते हैं मैं वहां पे बस चलाता हूँ। अब कोई और बिजनेस शुरू किया होता है कहलाता, तो वो कभी भी ऐसा नहीं फील करते कि ये कोई इंफीरियोरिटी है। तो इससे आप अंदाजा करें कि मुसावात का दर्स आप ये हमारे बताएं, इस्लाम ने भी दिया है। आप पठान हैं या कि आप पंजाबी हैं? सर मैं न्याजी। वो ही पठान है ना। यस सर। पठानों का ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो क्या करते हैं, ये पंजाब का प्रॉब्लम है और उर्दू स्पीकिंग का प्रॉब्लम है। उर्दू स्पीकिंग हर बंदा जो है ना, जो 47 में आया था वो नवाब था। ये शहरी कल्चर का प्रॉब्लम है ना, जो प्लेन्स का कल्चर है। ठीक। पठानों का ये कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो तो अपने आप को जहां भी होते हैं वो कहते हैं वी आर हेयर टू रूल। उनकी तो दुनिया ही और है। पठानों का ये कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ कि वो अपने प्रोफेशन को छुपाएं, क्योंकि कास्ट सिस्टम पठानों में नहीं है। एक ही ट्राइब के अंदर कोई बेचारा गरीब होता है और कोई बड़ा होता है, बट द ट्राइब इज द सेम। एक ट्राइबल इक्वालिटी है, लेकिन नॉट अमंग पंजाबीज एंड उर्दू स्पीकिंग जो प्लेन्स के लोग हैं, वहां पे तो हायरार्कीज है ना बरादरी की, ये ऊंचा है ये नीचा है। तो मैंने तभी पूछ लिया बिकॉज इफ ही इज अ बस ड्राइवर, ही इज प्राउड ऑफ द वर्क, ही मेक्स एन ऑनेस्ट लिविंग। लेकिन पंजाबी वहां पे जाके कहते हैं, शादी की थी मेरे एक दोस्त ने, दैट ही इज एन ऑफिसर इन द स्वीडिश रेलवेज। जब उसकी बीवी आ गई, वो बीए पास थी, उसने प्रोटेस्ट किया कि ये तो वहां पे सफाई करते हैं, कोई रेलवे में काम कुम भी नहीं थे करते वो। लेकिन मैंने किसी पठान को ये कहते नहीं देखा ऐसा। आई इमीडिएटली न्यू कि ये उनका प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए ना आप? सर वो लेकिन शहरों, सर ये हायरार्की जो है ये भी तो ह्यूमन नेचर है। अब आप जो है आपने इतनी यानी कि स्कॉलरशिप आपने बिल्ड की है, राइट? तो अगर मुझे ये शो करना है कि मैं आपसे कम नहीं हूं, तो मैं आपकी जो है उन चीजों पे बात करूंगा जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है। वेयर वर यू बोर्न, आप क्या थे, और फिर मैं खामखा पॉइंट आउट करूंगा कि आप तो कम हैं। तो ये बेसिकली मेरा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। एक ये ऑफ एक्सप्लेनेशन है। कोर्स, ऑफ सेकंड ये है कोर्स, कि अगर आप भी अमीर हैं मैं भी अमीर हूं, तो फिर तो हम इक्वल हो गए ना। तो मुझे तो हायरार्की बिल्ड करनी है, तो क्यों ना ठीक, हायरार्की उन चीजों पे बिल्ड करूं कि जो जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है। और इस तरह आपने राइट। कई दफा एग्जांपल्स भी दी कि दलित्स के साथ बुरा होता था, लेकिन उनके अपने लीडर्स का भी बताया। आई बिलीव कि अम्बेडकर साहब का आपका पूरा है वो, यानी कि उनके राइट्स के लिए उन्होंने फाइट की। और अब जो है हालांकि उनके यहाँ फेमस है ब्राह्मण और दूसरे, तो वो फेमस है, तो वहां पे इस पे डिबेट चल रही है। यहाँ वाले बिल्कुल पे सर। आप डिबेट ही नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ आप हम तो मानते ही नहीं है। आप कहते हैं जी इस्लाम के अंदर तो सब इक्वल है। दिस इज नॉट ट्रू। मैंने किसी सैयद को गैर सैयद को बेटी देते हुए नहीं देखा, किसी चौधरी को नीचे कमी को बेटी कभी नहीं देते देखा। तो ये वही हिंदू कास्ट सिस्टम ही हमारे में है ना। इट्स अ वन वे ट्रैफिक कि अपने से नीचे की लड़की ले लो, लेकिन नीचे वालों को अपनी लड़की नहीं देनी। हर एक में ये है। और सर आपने पॉइंट आउट किया था कि ये आज से नहीं आया। आपने सर सैयद अहमद खान के बारे में बताया था कि वो ही वॉज प्रोग्रेसिव। मेरा जो कॉलेज है वो FG सर सैयद कॉलेज रावलपिंडी कैंट है, तो सर सैयद के नाम से, और उसका बड़ी प्रोग्रेसिव हमने सुना। लेकिन आपने ये पॉइंट आउट किया कि ही वॉज प्रोग्रेसिव ओनली फॉर सर्टन क्लास, अशराफिया के लिए। अशराफिया के लिए बिल्कुल। उन्होंने कहा है, मसलन 1857 में जो बगावत हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसके अंदर जो थे ना ये वीवर्स, जुलाहे मुस्लिम, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। वजह क्या है कि जब अंग्रेज आए थे तो सारी दुनिया में
इन वीवर्स का जो है ना क्लॉथ, वो बिकता था दुनिया के अंदर। अंग्रेजों ने यहां आके फिर जब ये मशीनरी के जरिए क्लॉथ प्रोड्यूस करना शुरू किया, तो इतनी ड्यूटीज लगा दी हमारे प्रोड्यूसर्स पे कि उनकी एक्सपोर्ट ही बंद हो गई और उनकी जो कारखाने थे वो खाली हो गए। तो जाहिर है 1857 में उन्होंने अगर उस जंग में हिस्सा लिया तो इसलिए लिया कि उनको भूखों नंग कर दिया था अंग्रेजों ने। तो वहां पे सर सैयद इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि ये बदजात लोग हैं हम जो जो जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। हालांकि उसके अंदर बड़े बड़े उलमा का असर भी था। शाह वलीउल्लाह के दोनों बेटे शाह अब्दुल अजीज और शाह इस्माइल इन्वॉल्व थे, तो वो झूठ बोल रहे थे सर सैयद। फिर एक जगह पे उन्होंने, उनका बयान है कि उन्हें बुला लिया शायद मुरादाबाद में या कोई कहता है बरेली में। उन्होंने इनका जो एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज देख के वहां पे अपना स्कूल बनाया उसी तर्ज का। तो सर सैयद को बुलाया कि आप इसकी इनॉग्रेशन करें। तो वो गए। जब वहां पे उन्होंने पूछा कि यहाँ पे पढ़ेंगे कौन, उन्होंने कहा जी यहाँ के जो मुसलमान हैं, ये दुकानदार हैं, ये करते हैं। एज चीफ गेस्ट ही वॉज वेरी एंग्री पब्लिकली, सेइंग कि इंग्लिश मॉडर्न एजुकेशन सिर्फ अशराफिया के लिए, आप आम मुसलमान जो है ना वो मस्जिद वाली एजुकेशन ही ले। इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड। फिर उन्होंने कहा कि एक ये अशराफिया यानी पठान, तुर्क, मुगल, सैयद, ये सारे इनकी जो खास जब सिटिंग होती थी, एक ये यूपी का कल्चर है। हाँ, तो वहां पे सर सैयद ने कहा कि ये आईसीएस का इम्तिहान अंग्रेजों ने शुरू किया है, ये इंग्लैंड में ही होना चाहिए, इंडिया में नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि कोई किसी दर्जी का बेटा एमए पास करके इम्तिहान पास कर ले और अफसर बन जाए। आप बताएं क्या आप उसको मानेंगे? तो वहां पे सबने शोर मचाया, नेवर नेवर नेवर। ये मुसलमान ओवर मुसलमान बात कर रहे हैं सर सैयद। ये छुपा लिया गया। 1857 की जो किताब है उनकी, असबाब बगावत हिंद, उसके अंदर एक जगह लिखते हैं कि अंग्रेजों की सबसे बड़ी गलती क्या है। वो ये है कि उन्होंने जो इंडियन आर्मी बनाई है जिसमें लोकल लोग रखे हैं, उसमें एक ही यूनिट में हिंदुओं और मुसलमानों को रखा है। तो जब आप एक ही यूनिट में लोग रखते हैं तो वो खाना भी एक जगह पकाते हैं, रहते भी एक जगह है, तो उनमें दोस्ती हो जाती है। उन्होंने कहा कि आप कभी हिंदुओं, मुसलमानों, इनको एक यूनिट में ना रखें, वरना इनकी दोस्तियां हो जाएंगी। क्योंकि 1857 में एक्चुअली हिंदूज वर लीडिंग इट और मुसलमानों ने ज्वाइन किया और उन्होंने बहादुर शाह सफर को अपना एम्परर माना था। तो सर सैयद कहते हैं कि इनको तोड़ो, दैट इज द ओनली वे यू कैन रूल इंडिया। तो अब सर सैयद का वो कैरेक्टर मैं क्यों ना बताऊं, जो उनकी पॉजिटिव है कि उन्होंने कहा कि मॉडर्न एजुकेशन के बगैर हम कहीं नहीं है। ये बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन ही वांटेड टू रिस्ट्रिक्ट ओनली फॉर द अपर कास्ट मुस्लिम्स, नॉट फॉर द कॉमन पीपल। सो दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है। आपके सवाल कुछ और सवाल, स्टूडेंट्स के कोई सवाल पूछें तो सही। सर If स्टूडेंट्स somebody के wants तो to ask. सर स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो मेरी तरफ ही सर रेफर ये जो करते हैं। आपने हाँ सनी आप आ जाएं। सर अच्छा, आपने जो अभी सर सैयद वाली बात की कि देर आर पॉजिटिव थिंग्स अबाउट हिम और उसके साथ साथ देर आर नेगेटिव थिंग्स दैट नोबडी वांट्स टू पॉइंट आउट। इसी जी तरीके से आपकी बुक्स के भी देर आर क्रिटिक्स। कुछ तो कहते हैं कि दे आर encyclopedia ऑफ पार्टीशन एंड एवरीबडी हु वांट्स टू नो अबाउट पार्टीशन शुड रीड योर बुक। कुछ कहते हैं कि जो क्रिटिक्स जो हैं वो ये कहना चाहते हैं कि आपने डिस्टॉर्शन किया है हिस्ट्री में। हाउ तो इट्स बिकॉज के दे हैव बीन लर्निंग इट डिफरेंटली। वो वही पढ़े थे जो उनको टेक्स्ट बुक्स में बताया गया है। दैट्स So इट। they read what they wanted to read, but हमारी पाक स्टडीज की बुक्स या किसी भी बुक में इतना डिटेल्ड नहीं है, and they don't want to trust you or any other book because that's what they've been told. एग्जैक्टली। कि so what do you say देखिए, about that? I know what can I say? I can say this is expected.
आई वुड बी वेरी स्टूपिड टू बिलीव कि मेरी किताब को वो लोग जो एक पूरी झूठी नैरेटिव बनाते रहे हैं वो उसको अपने दिल से कबूल कर लें। उनकी सारी बिजनेस उस पर चलती है। बात यह है कि द ओनली वे टू रिफ्यूट माई बुक इज टू कम अप विद काउंटर एविडेंस। किसी को पसंद नहीं आना उसका तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम, मेरा हल नहीं है ना। लेकिन जो मैंने फैक्ट्स दिए हैं उनको चैलेंज सर करके। आपकी जो रिसर्च है वो एवरीथिंग इज आपने खुद की है, ठीक है, रिसर्च बेस्ड है। उनके पास कोई इस चीज की रिसर्च नहीं है। ऑल तो क्लेम एंड ऑल प्रूफ दे हैव आर दोस पास्ट स्टडीज बुक्स। दे डोंट वांट एग्जैक्टली टू लिसन टू द नेगेटिव पार्ट ऑफ इट। तो फिर तो तो फिर उसका इसका क्या हो सकता है? लाइक जैसे कि बस। देर आर स्टूडेंट्स जो कि पढ़ना चाहते हैं, दे वांट टू नो, बट देर इज अ थिंग कि हमें इस बारे में इस तरीके से नहीं बताया गया था। हाँ ठीक है, मगर मैं आपसे अग्री कर रहा हूं। दुनिया के अंदर अभी भी एक कमेटी है लंदन के अंदर, इट्स कॉल्ड द फ्लैट अर्थ सोसाइटी, और उसके कई मेंबर हैं। तो दुनिया में ऐसी हकीकतें हैं जो सब मान गए हैं, उनको नाम मानने की भी सोसाइटीज है। फ्लैट अर्थ, एक तो मौलवी है ना जो कहते हैं कि नहीं अर्थ फ्लैट है। आप अभी जाके देख लें, यूट्यूब पे जाएं, उलमा ऑन, वो कहते हैं जी मौलाना अब्दुल अहमद रजा खान ने कहा था कि अर्थ तो फ्लैट है तो लिहाजा फ्लैट है। मगर ये है हमारे उलमा, लेट्स फॉरगेट देम। लंदन के अंदर सम फ्रीक्स हैव द फ्लैट अर्थ सोसाइटी। तो पीपल not wanting to look at the facts and accept them will always be there। ये कोविड के ऊपर कितनी कंस्पिरेसी थ्योरीज आई हैं कि ये इजराइल ने की थी पैदा, मैंने कहा अगर इजराइल ने की थी तो सबसे ज्यादा लोग तो वेस्टर्न सोसाइटीज में मारे गए हैं एवरेज। यानी इजराइल में भी मैनी पीपल वर किल्ड। और अगर उन्होंने, मुसलमान अभी भी नॉट इन सो लार्ज नंबर्स, तो अगर मुसलमानों को मारने के लिए किया था तो इट्स अ टोटल फेलियर। पाकिस्तान हैज डन वेरी वेल। तो ये व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज फैक्ट्स आर वन थिंग, एक्सेप्टिंग देम इज अनदर थिंग। तो मेरी किताब को चैलेंज करने का हर एक को हक है, बट बाय कमिंग अप, बाय शोइंग दैट दिस इंफॉर्मेशन, this reference I give is incorrect, and if they can't do it, then they have no case. They have a complaint that I understand. लेकिन केस तो नहीं ना बन सकता कोर्ट के अंदर। अलम So शाह, आपका that's it। क्वेश्चन। हाँ जी। सर सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने कहा जिना वाज अ वेरी गुड लॉयर। ठीक है, जिना वाज अ वेरी गुड लॉयर, लेकिन initially he wanted Hindu Muslim unity, like in 1916 Lucknow Pact पे हम देखते हैं he wanted Hindu Muslim unity, and then further on all of like he wanted a separate state, एक अलग country चाहिए। So what do you think led to his journey to that? Now then you have to read my book, because the book is now available. It's a Pakistani publication. It's impossible to give you all the reasons, but the main reason was that Jinnah also had a big problem. He never wanted to be leader number 2. When Gandhi came and became a leader, Gandhi changed the whole framework of politics. Up until then, both Congress and Muslim League were elite parties, limited only to the educated upper classes. Gandhi ji opened it to everyone. वो था 4 आना मेंबरशिप, एनीबॉडी हु कुड पे। उस जमाने में ना 1 रुपए में 16 आने होते थे, 4 आने साल के मेंबरशिप थी। तो सडनली कांग्रेस बिकेम अ पार्टी ऑफ मिलियंस। उन मिलियंस को मोबिलाइज जब गांधी जी ने किया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, तो जिन्ना साहब फाउंड हिमसेल्फ अनफिट फॉर दैट। ही वाज वेरी गुड इन प्लीडिंग केसेस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इन अ कोर्ट, but he had no contact with the masses. 1937 के बाद then he becomes a mass leader, and then he uses the Islamic card saying कि अगर इंडिया पार्टीशन ना हुआ तो इस्लाम जो है वो निस्तो नाबूद हो जाएगा, मुसलमानों का निशान नहीं रहेगा। और somehow he got the vote from the Muslims and we got Pakistan.
So you have to read my book where I give all the instances which push Jinnah in this direction from the one he started from. ठीक है? सर एक्चुअली मेरा भी और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका बिल्कुल साइंस का बैकग्राउंड है, ठीक है। अब मैं तो आपकी हर एक वीडियो जो है वो लाजमी देखता हूँ, तो उसमें आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है 4 फेजेस कि कैसे वो नेशनलिस्ट से कम्युनलिस्ट हुए, फिर कैसे कम्युनिटेरियन और किस तरह। तो वो चूंकि हम अभी अभी खुद को एजुकेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई एम वेरी इग्नोरेंट इन पाकिस्तान स्टडीज, तो हमारा ये स्टार्टिंग जर्नी है। तो इनशाल्लाह ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता बुक्स भी रीड करेंगे, हमारे कलेक्टिव बुक रीडिंग सेशंस भी हैं, तो उसके लिए हाँ यस सर, तो उसमें हम जो है आजकल पढ़ रहे हैं सोफीज वर्ल्ड, और अच्छा हाँ तो सर आहिस्ता आहिस्ता हम खुद को वो कर रहे हैं। अभी एक और स्टूडेंट है आयदा, ये डाउ यूनिवर्सिटी में होती है, तो आयदा आप प्लीज अपना क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जो मैं अभी जो बुक पढ़ रही हूँ स्टार्ट की मैंने आपकी जिन्ना की जो है वो बुक स्टार्ट की थी। सो मतलब मैंने जितना यूजुअली अब तक जितना हम लोग पढ़ते आते हैं यानी करिकुलम में, और इसके बिसाइड जो मैंने घर में बुक्स डिफरेंट पाकिस्तान स्टडीज की देखी, तो उसमें लाइक जो रेफरेंसिंग स्टाइल है, जो हमारा एक साइंटिफिक मेथड वाला रेफरेंसिंग स्टाइल, वो मुझे नहीं मिलता था। आपकी बुक में मैंने देखा कि काफी सारे वो स्टाइल और बहुत ही मल्टीपल एग्जॉस्टिव रेफरेंसेस थे, तो ये एक मुझे बहुत से स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात ये कि मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने जिन्ना में स्टार्टिंग में आपके रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग पर लिखा हुआ है कि वो मुस्लिम लीग के टाइम पे जब इंडिपेंडेंस के बिल्कुल जो मतलब आखिर था टाइम हमारा इंडिपेंडेंस के वक्त में, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं अलाउ करते थे कि मतलब कम्युनिस्ट लोगों को यानी कम्युनिस्ट थाउट्स को कि ये इस्लामिक जो हमारा आइडियोलॉजी उसको डैमेज होगा। बट एट द टाइम ऑफ भुट्टो या उसके बाद जो है हमने देखा कि बीजिंग कम्युनिज्म इन होने लगा, हमारे इसमें इंक्लाइनेशन हमारी उस तरफ हो गई, अभी तक भी हम ये देखते आ रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या थाउट्स हैं कि जो हमारा चेंज हो गया और हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो एक हमारा थाउट है और दूसरी तरफ ये है, तो इसमें मतलब क्या आपका क्या टेक ऑन है? थैंक यू। बात ये है कि मैं जब आपकी उम्र का था तो मैं कम्युनिस्ट था, समझ गए आप, लिहाजा सो आई नो द स्टोरी फ्रॉम इनसाइड। अब तो मैं अपने आप को रैशनल सोशल डेमोक्रेट कहता हूं। आई से आई लुक एट फैक्ट्स एंड देन आई टेक अ पोजीशन। आई एम अ सोशल डेमोक्रेट बिकॉज आई बिलीव all human beings should be treated as equal. I should not treat you in a way I don't want you to treat me. That's my principle. ठीक है, लेकिन वो डॉगमेटिक कम्युनिज्म ये वो आई थिंक इट डजंट वर्क। टोटल फ्रीडम भी कभी काम नहीं करती, टोटल इक्वालिटी भी कभी नहीं करती, इनका मिक्स जो है वो बेस्ट होता है। यानी पाकिस्तान के अंदर आपको शायद पता नहीं, एक पूरा ग्रुप है सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट का who thinks that जिन्ना साहब जो है वो तो because of 11th August speech Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, वो तो बहुत सेकुलर लीडर थे, लेकिन वो डंडी इस तरह मारते हैं कि 14 अगस्त को 3 दिन के बाद जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली की इनॉग्रेशन हो रही थी, तो वहां पे माउंटबेटन ने खड़े होकर कहा कि ठीक है आपका एक मुल्क बन रहा है और बड़े बड़े अजीम मुसलमान लीडर हुए हैं दुनिया में, और एम्परर अकबर का उन्होंने जिक्र किया। तो जिन्ना साहब गॉट अप एंड सेड कि ठीक है अकबर इज, लेकिन हमारे मेन जो आइडियल है वो प्रॉफिट मोहम्मद है। एंड देन ही राइट्स, जिन्ना साहब सेज he first debated the Jews and Christians and then treated them very well. Actually he was confusing. जिन्ना साहब की कोई ना इस्लाम पे पता नहीं कलमा भी उनको कितना आता था सही एक्यूरेट, लेकिन इतना तो है कि इस्लामिक हिस्ट्री में ही हैड नो नॉलेज। जो है ना वो मिसाक मदीना तो तब हुआ था जब ये लोग आए हैं मक्का से और वहां के यहूदियों और अरबों के साथ एक अग्रीमेंट हुई थी, उसके अंदर तो कोई डिफीट नहीं था कि क्रिश्चियंस और जूस को, वो तो बल्कि ट्रीटी हुई थी। जूस के साथ जो बाद में हुआ वो बनु कुरैजा और बनु खैबर में जो हमले हुए हैं, उसके बाद
उनको निकाल ही दिया गया सारे अरेबिया में। लेकिन कुरान की एक आयत है कि पीपल ऑफ द बुक, जो लोग अल्लाह में बिलीव करते हैं और उनमें वो नाम लिए गए हैं जूस, क्रिश्चियंस एंड सेबियंस। सेबियंस अब गायब ही हो गए हैं। ये मुसलमानों के दरमियान रह सकते हैं अगर वो जजिया दें। तो ये प्रिंसिपल बना ना इस्लामिक लॉ का। व्हेन मोहम्मद बिन कासिम केम टू सिंध और उसने हमला सिंध को, यानी ही वन द वॉर, राजा ताहिर की छुट्टी हो गई, अब सिंधी नेशनलिस्ट मेरे गले पड़ जाएंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि उसको समझना है कि हाउ टू डील विथ हिंदूज एंड सम बुद्धिस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियंस और जूस तो थे नहीं। तो उन्होंने फिर दमिश्क भेजे लोग कि वहां के उलमा से एक रूलिंग लेके आए। तो वहां से फतवा आया कि अगर ये लोग जजिया देने को तैयार हैं तो ठीक है, ये अपने बिलीफ पे कायम रहने दो इन्हें, और ये अपने जो है ये मंदिर शंदर इनका मुरम्मत भी करा सकते हैं एंड सो ऑन। तो मैं हमेशा इंडियन हिंदुओं से बात करता हूं कि ये उस जमाने की बड़ी एनलाइटेंड लॉ थी कि उन्होंने, उसे कहते हैं इस्लामिक लॉ में कियास, by using analogy. They use the analogy that if Jews and Christians can live in peace among Muslims, then Hindus are also somehow believing in the same God, ultimately. So they can also live among Muslims by paying jizya, बजाय के सबका कत्ल आप कर दें। ठीक है? तो what I'm trying to say is कि कम्युनिस्टों के खिलाफ तो जिन्ना साहब की स्पीच है 19 मार्च 1944 की कि हैंड्स ऑफ, हैंड्स ऑफ, हैंड्स ऑफ यू कम्युनिस्ट, यू थिंक वी आर फूल्स, परहैप्स वी आर, बट वी हैव आवर ओन आइडियोलॉजी, इस्लामिक आइडियोलॉजी, एंड वी डोंट नीड एनी इज्म। ये जब से मैंने किताब में लिखा है, वो जितने पाकिस्तानी कम्युनिस्ट जिन्हों को सेकुलर बना रहे थे वो चुप है। प्राइवेटली मुझे बहुत गालियां पड़ती हैं क्योंकि मैंने उनकी भी छुट्टी करा दी है। और पाकिस्तान बनने के बाद तो कम्युनिस्टों के साथ इतना बुरा सलूक पाकिस्तान में हुआ, ये सब बोलते हैं। फिर वो बिल्कुल ऐसी हालत है ना, सच बोलने की हिम्मत चाहिए, वो है नहीं। नीयत शायद अच्छी है कि यार जिन्ना के जरिए अगर सेकुलर स्टेट बनती है तो क्यों ना बना ले। और मैंने कहा अगर 74 साल में ये तुम्हारा वाला ट्रिक चल जाता तो कामयाब ना तुम हो जाते। डोंट यू सी इट लीड्स नोवेयर। अगर उसमें से कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा तो देन इट्स अ फेल्ड अप्रोच। जिन्ना साहब वाज रेबिडली एंटी कम्युनिस्ट, एंटी सोशलिस्ट। पाकिस्तान बनने से पहले उन्होंने अमेरिका को इस्वानी साहब को भेजा जो बाद में एम्बेसडर बने, ये कह के कि आप हमें अपना क्या कहते हैं फ्रंट लाइन स्टेट माने, पाकिस्तान को बनने दे। अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ था बनने के। हाँ जी, कहा कि आप जब बनने दे हम आपकी जंग जो है मिडिल ईस्ट में और साउथ एशिया में लड़ेंगे कम्युनिज्म के खिलाफ। वो भी मैं इन किताबों में ले आया हूं। और ये मुझे कोई इल्हाम तो नहीं हुआ, या ये सारे फैक्ट्स थे जो ये छुपाते थे। नाउ एवरीथिंग इज इन द पब्लिक। तो क्या हो सकता है सर? एक पॉइंट ये भी है कि कम्युनिस्ट जो नेशंस थी वो कहती तो थी कि गरीबों के लिए है, लेकिन सर वो इंतहाई जबरदस्त किस्म की अथॉरिटेरियन स्टेट्स भी तो थी। तो इस वजह से आई एम विद जिना ऑन दैट कि उन्होंने, आई थिंक सो, चाहे वेस्ट का उन्होंने साथ दिया तो आई बिलीव कि उन्होंने उस वक्त के हिसाब से ठीक किया, क्योंकि वो अगर अथॉरिटेरियनिज्म पाकिस्तान में आता तो आई बिलीव कि शायद डिजास्टर होता है। लेकिन ये तो रेट्रोस्पेक्ट में तो हर कोई जो है ना वो समझदार होता है। तो एक पॉइंट है। जैसे जिन्ना साहब की वजह यह थी कि जिन्ना साहब वाज अ सेल्फ मेड मैन और उन्होंने सारी उम्र अमीरों के केस लड़े थे, तो ही बिलीव्ड इन प्राइवेट प्रॉपर्टी, सिंपल एज दैट। और बात माफ करना, 1945 में 47 तक सोवियत यूनियन के 27 मिलियन लोग मारे गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में।
रशिया के पास चांस ही कोई नहीं था कि वो अपने लोगों के प्रॉब्लम हल करते करते कोई एक एक्सपेंशनिज्म करें। तो ये बिल्कुल झूठ था कि रशिया इज कमिंग। आई एम टेलिंग यू 27 मिलियन पीपल वर किल्ड बाय द नाज़ीज। उन्होंने जूस को 6 मिलियन मारा है, 27 मिलियन सोवियत सिटीजन मार दिए उन्होंने, इतने जालिम थे वो। तो ऐसा मुल्क जिसके पास खाने पीने को नहीं था वो कैसे इसकी तरफ आता? नो 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 नो, आई डोंट थिंक दैट वाज द रीजन कि जिन्ना साहब कोई बड़े डेमोक्रेट थे। क्योंकि जब पाकिस्तान में उन्होंने गवर्नर जनरल बने हैं तो डेमोक्रेसी के सारे प्रिंसिपल्स उन्होंने तोड़ दिए ना। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर जैसे नेहरू बना और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करते, वो ब्रिटिश वाइसरॉय की तरह गवर्नर जनरल बन गए और गवर्नर जनरल की भी एक्स्ट्रा पावर्स ले ली। इलेक्टेड गवर्नमेंट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की डिसमिस की विदाउट रीजन। पार्लियामेंट्री सिस्टम में दैट्स नॉट पॉसिबल। सिंध की गवर्नमेंट जनरल वो खोड़ू की डिसमिस कर दी क्योंकि ही डिडंट वांट कराची टू बी मेड फेडरल टेरिटरी। वो कहता था ये सिंध का वाहिद शहर है जो इंपॉर्टेंट है। बंगाल में गए और कहा यहाँ उर्दू विल बी द ओनली नेशनल लैंग्वेज, जबकि बंगाली पॉपुलेशन पाकिस्तान की 55% थी। उस जमाने में 47 में उर्दू स्पीकिंग मदर टंग सिर्फ 4% की थी पाकिस्तान के अंदर, ये जो मुहाजिर आए थे। ठीक है, पंजाबी पख्तून जो हैं ये उर्दू पढ़ लिख लेते थे, तो पढ़ने लिखने की एबिलिटी इज नॉट द सेम एज द मदर टंग। आई थिंक व्हेन यू स्पीक पश्तो और सराइकी यू डोंट हैव टू मेक एनी एफर्ट। जिस तरह पंजाबी आई कैन स्पीक इजिली, लेकिन उर्दू में थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है ना बात आर्ग्यू करते हुए। तो बंगालियों के तो ये वो है ही नहीं था कोई। तो जिन्ना साहब यूज्ड हिज अथॉरिटी बिलीविंग ही इज डूइंग इट फॉर द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये मैं मानने को तैयार हूं कि अपने ख्याल से अब वो ही वाज उन्हीं के एफर्ट से पाकिस्तान बना था। सो ऑल द पॉलिसीज ही अंडरटुक he thought were the best for Pakistan. But from a democratic political theory, this is not acceptable that the Governor General should preside over cabinet meetings and not the Prime Minister. Governor General का तो काम है, foreign dignitaries आ गए, Independence Day हो गया, ये वो ambassadors की, मगर actual running of the government is always the Prime Minister. But he was running until April 1948 when he became ill. तो हम कह सकते हैं कि ठीक है कम्युनिज्म के वो खिलाफ थे कि वो अथॉरिटेरियन है, लेकिन वो बहुत अथॉरिटेरियन खुद भी थे फॉर गुड एंड बैड। बहुत यस, उन्होंने सर ज़फ़रुल्लाह को बनाया फॉरेन मिनिस्टर जो एमडी थे। आई डोंट थिंक पीपल अप्रूव्ड ऑफ इट, बट बना दिया उन्होंने। और उनके दौरान बोल भी कोई नहीं सका, यही क्योंकि उनकी इतनी अथॉरिटी थी, कैरिस्मेटिक लीडर थे। और सर आपने उनके लियाकत अली खान साहब के साथ जो इंटरेक्शन है वो भी इसी चीज को डिपिक्ट करता है, इसी लाइन ऑफ थॉट को। अच्छा सर, हमारे एक स्टूडेंट है अनुष, वो आपसे क्वेश्चन करना चाह रही थी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट। अच्छा, ये वाहिद है आपका ग्रुप जहाँ पे लड़कियां ज्यादा बोल रही हैं। आई हैव नेवर एवर, मेरी सारी जिंदगी में हसरत ही रही है जब मैंने पाकिस्तान में पढ़ाया भी है कि कोई लड़की कभी सवाल करे। तो आपका तो यार अजीब जादू है। दिस इज द ओनली क्लास आई विल नेवर फॉरगेट यू। ये लड़कियां बात कर रही हैं, ये अच्छे टीचर की निशानी है कि आपने सबको इनकरेज किया हुआ है। हाँ जी बोलिए। सर हम पहले अपनी ना गर्ल्स को बोलने देते हैं, फिर हम बॉयज भी बोलेंगे। वेरी गुड, आई लाइक दैट। हाँ जी, हाँ जी अनुष जी बोलिए। अच्छा, तो सर मेरा सवाल ये था कि इनिशियली यू मेंशन कि हाउ मुस्लिम्स हैव बीन wreaking havoc all over the world, which I completely agree with. And then now just recently you just said कि बहुत हिम्मत चाहिए होती है यहाँ पे कुछ भी बोलने के लिए because we get bashed and all. I wanted to ask कि अगर हम अपनी इस्लामिक हिस्ट्री देखें, so there was a बहुत बड़ा era और बहुत बड़ा region that the Persian Empire, the Ottoman empires, उस्मान के ज़माने में there were so many empires जिन्होंने cover किया, even in the subcontinent. अगर मुगल empire भी देखें, so they ruled for some good time and they were successful, I would say. What happened in today's world कि अच्छा उस टाइम पे इन empires में हर तरह के belief sects भी होते थे, इस्लाम के अंदर भी differences आज हैं उस तरह के वो भी होते थे, different religions भी होते थे, there were dialects, there were regional
so many, contradictions. But what was it that made them successful at that time? But आज के ज़माने में, in such a small country, we are not able to achieve that level of, acceptance for each other's belief. I wanted to ask, is there a possibility? Of course there is, but what is your stance कि जो British rule आया था, उनका इसमें क्या किरदार था? And then at the moment हमारे जो present day ulmas हैं, that compared to उस ज़माने के ulmas, they have this bashing tone, they have this, superiority complex. Where is this coming from? What do you think that influenced this? Well, this is a huge panorama of questions. Let me see what all I remember. But I totally agree with you. If you look at the historical record, क्योंकि ये Quranic verse थी कि Jews and Christians can live among Muslims by paying jizya, तो जहां जहां मुसलमान रूल आया और by extension उन्होंने ये हिंदुओं को भी कर दिया, तो मुसलमानों का रूल जो है ओकेजनली ओप्रेसिव होता था. चंद लीडर्स, चंद बादशाह जो हैं वो फोर्स करते थे, बट मोस्ट ऑफ देम वर हैप्पी, और उन्होंने ब्राह्मणों को और राजपूतों को अपने साथ मिलाया हुकूमत करने के लिए. यूरोप का रिकॉर्ड अगर आप देखें तो वो बहुत इनटॉलरेंट है. यूरोप ने अपनी माइनॉरिटीज को इतना इल ट्रीट किया है. ये 6 मिलियन जूस अभी इन्होंने ही मारे हैं ना, आपने मैंने तो नहीं मारे ना, लेकिन थ्रू आउट हिस्ट्री इन्होंने कोई, इनकी अपनी जंगें जो हुई हैं बिटवीन द प्रोटेस्टेंट्स एंड द कैथलिक्स, दे वर सो ब्लडी. अभी तो मुसलमान शिया सुन्नी जो होते हैं बाय कंपैरिजन आर नथिंग. एक तो खैर दुनिया बदल गई है ना बिकॉज ऑफ इंटरनेट, और एकदम खबर आ जाती है. बट during the 17th century it is called the war of religions. It's for 30 years, actually it's for 150 years, in which so much blood was spilled in Europe that nearly 1/3 of the people in Europe left to find refuge in the Americas, यानी North America में. ये जितने लोग यहाँ से गए हैं वो जान बचा के गए हैं. बाय कंपैरिजन मुसलमानों का इतना इस तरह जुल्म नहीं हुआ. हाँ, इंडिविजुअल लीडर्स ने किया होगा. सो मैंने ये भी हमेशा लोगों को बताता हूं कि प्रॉब्लम कहां हुआ है. क्रिश्चियनिटी लॉस्ट इट्स अथॉरिटी आफ्टर द साइंटिफिक रेवोल्यूशन. कोई बाइबल को नहीं कोट करता अपनी बात करने के लिए. हमारे यहाँ साइंटिफिक रेवोल्यूशन की बात ही नहीं होती, तो हमारे यहाँ कुरान की अथॉरिटी लिटरली ली जाती है. हालांकि एक तो है ना इमाम गजाली, एक और थे इब्ने रुश्द. इब्ने रुश्द ने 13वीं सदी में कह दिया था कि इन केस ऑफ अ क्लैश बिटवीन द फाइंडिंग्स ऑफ द फिलोसफर्स एंड द वर्सेस ऑफ द कुरान, follow the philosophers and read the Quran metaphorically. Metaphorically क्या होता है? Symbolically. लेकिन इब्ने रुश्द ने जब ये बात की तो सोसाइटी अभी फ्यूडल इस दौर में थी. साइंटिफिक रेवोल्यूशन जिसने बाइबल की अथॉरिटी को तितर बितर कर दिया, वो वेस्ट में आई. अब nobody quotes the Bible for anything. वो चंद पादरी पुदरी, एक मुझे मैं अब केस बताऊं, मेरे दरवाजे पे आ गए ये कि जीसस वांट्स टू एम्ब्रेस यू, और मैंने कहा मैं वहां से भाग के आया हूँ ये एम्ब्रेस से, तो तुम्हारी एम्ब्रेस की मुझे कोई जरूरत नहीं. आई जस्ट वांट टू बी अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. तो इस किस्म के फ्रीक्स आपको मिल जाएंगे who would knock your door, but that's all. लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप देखें, ये 1000 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को उठा के ले गए हैं सिंध से, फोर्सिबली कन्वर्ट करके, और एक मुल्ला तोता या क्या उसका नाम है, पीर, वो उनको शादियां करवा देता है. ये आपके सामने हो रहा है. पेशावर के अंदर एवरी डे सम अहमदीज बीइंग किल्ड. आई डोंट नो व्हाई सो मच इन पेशावर. हाँ जी. और अभी वो जो इन्होंने श्रीलंकन मार दी है, हुआ ये है कि मैंने आपको बताया फ्रस्ट्रेशन क्या है. इनको ये मौदूदी ने कहा हुआ है, हर मौलवी ने कहा हुआ है कि
तुम सबसे अफजल कौम हो और अल्लाह ने तुम्हें ये मैंडेट दिया टू रूल द वर्ल्ड। सैयद कुतुब ऑफ इजिप्ट जो है मुस्लिम ब्रदरहुड अखवान मुस्लिमीन के जो हेड थे, अबुल आला मौदूदी, इमाम खुमैनी, तीनों के फतवे हैं कि द कुरान मैंडेट्स मुस्लिम्स टू एस्टैब्लिश शरिया ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय ऑल मीन्स। तो दे आर स्टिल फाइटिंग अ जिहाद अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। जबकि नेशन स्टेट का ये दौर है ना, आप कैसे जिहाद करेंगे आप? तो ये जो गैप है ना बिटवीन व्हाट यू बिलीव यू आर एंड व्हाट यू एक्चुअली आर, वो हम उसे हजम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक्सेसिव एनर्जी इस तरीके से, कोई सुसाइड बॉम्बर हो जाता है, कोई यहाँ पे आके नॉनसेंस सी बातें शुरू कर देता है अपना यूरोप के अंदर। मैंने कहा यार 20 बिलियन मुस्लिम यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने बिजनेसेस एस्टेब्लिश कर ली हैं, कारें रखी हुई हैं। मुझे यहाँ पे 48 साल हो गए हैं, मैंने तो आज तक कार चलानी नहीं सीखी। आई एम नॉट बॉदर्ड। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि 6 महीने के बाद कार की फोटो उतरवा के अपने गांव भेज देते हैं टैके दे नाल, बिकॉज यू नो दैट्स द वे वी आर। तो that is I completely agree with you. That is the issue we're facing. What I was trying we to are say very is कि materialist. ऐसा क्या हुआ? Very, yeah, I agree. What I was trying to say is कि ऐसा क्या हुआ over the years in not so much of a time span कि ये जो superiority complex है वो इतना extreme पे आ गया कि we're facing what we have today. लेकिन हमारी ability to do that is zero ना। अभी इमरान खान इस्लामोफोबिया करता है, लेकिन चाइना में जाके भीख मांग रहा है, और चाइना ने सबसे ज्यादा जुल्म मुसलमानों पे किया हुआ है। उगेर मुस्लिम्स के ऊपर ही चुप, कहता है होता ही नहीं है। एक दिन तारीख इसको पकड़ेगी, बिकॉज इतना कॉम्प्रिहेंसिव जो जुल्म चाइना में हो रहा है ना, कहीं और नहीं हो रहा। और तो सर, वहां पे तो ये चुप है, वहां पे तो ये चुप है। बिल्कुल। और सर, और सारे यूरोप के अंदर यार, सारे यूरोप में 20 मिलियन मुसलमान रहते हैं, हर जगह पे मस्जिदें बनी हुई हैं। हमारा जो इलाका है एक अलबी, वहां पे तो उन्होंने कन्विंस करके अजान की भी इजाजत दे दी हुई है। और क्या करें वो? 20 मिलियन आर लिविंग मोर और लेस इन ग्रेट पीस। भाई कोई रेसिस्ट इंसिडेंट भी हो जाते हैं, यहाँ पे भी तो रेसिस्ट है ना। एक दफा मैं, मेरी बीवी, मेरा बेटा, वी वर इन अ बस, तो एक रेसिस्ट था who wanted to attack us, लेकिन the driver helped us, and an old lady, Swedish lady, got up and told the driver कि ये जो है ना, इनको ये तंग करेगा तो तुम कुछ करो। तो I have so you do have these people। अगर बैड लक हो तो आपको कभी कभी मार भी पड़ सकती है किसी रेसिस्ट के हाथ से। वो बिल्कुल ऐसे है, पाकिस्तान के अंदर किसी मौके पे आपको छुरी दिखा के तो आपसे चीजें नहीं लोग छीन लेते। तो यहाँ पे मच बेटर देन एनीवेयर एल्स। लेकिन होता है जब ये आते हैं तो यहाँ ये पनाह किस तरह लेते हैं, कोई अहमदी बन जाता है, कोई शिया बन जाता है। और मुझे एक केस याद है, वो इनको डॉक्टर ने देखा कि यार हर बंदा ये दिखा रहा है अपनी वो छुरी के निशान। उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं हो सकता। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा जी ये 20 साल पुराने निशान है। तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनके, या उन्होंने इन पे मारे हैं वो क्या कहते हैं, कोड़े। तो हमारी जो इंजेन्युइटी है ना स्टोरी बनाने की, उसका तो जवाब ही नहीं है। जैसे ने बताया, हर पाकिस्तानी लड़का इज अ प्रिंस व्हेन ही मीट्स अ स्वीडिश गर्ल। तो मैं तो टीचर जब था, मुझे लोगों ने पूछा, मैंने कहा ये बस ये हमारी स्टोरी टेलिंग आर्ट जो है ना, इसका जवाब नहीं। सो दिस इज हाउ वी आर। अच्छा सर, उसमें मैं कहता हूँ बेसिकली प्रॉब्लम जो है ना, वी डोंट हैव अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन व्हिच हैज रिड्यूस्ड द अथॉरिटी ऑफ द कुरान टू अ स्पिरिचुअल बुक। बाइबल तो अब स्पिरिचुअल बुक है ना, कोई माने तो जाए चर्च में। चर्च यहाँ सारे खाली हैं। जहां से ह्यूमनिज्म आ जाती है ना, जो मैंने आपको असूल बनाया है कि आई शुड नॉट ट्रीट यू इन अ वे आई डोंट वांट यू टू ट्रीट मी। I think that's the best way to create
brotherhood, sisterhood in the world. That's enough. अब ये जरूरी है कि मैं मुसलमान हूं और फिर मैं सुन्नी हूं और फिर मैं देवबंदी हूं ताकि मैं आपका दोस्त बन सकूं? नहीं, आई डोंट थिंक दैट्स एनी लॉन्गर इंटरेस्टिंग. सारी यूनिवर्सिटियों में तो ये जाके वेस्ट की पढ़ना चाहते हैं ना पाकिस्तानी. Why? Because that's a freer society. लेकिन वैसे ये हर वो इनकलाब के मूड में भी हैं. तो वी आर अ ग्रेट पीपल. अरब ऐसे नहीं करते, बिकॉज अरबी वो जुबान जानते हैं, उसकी लिमिटेशंस भी जानते हैं. वी आर मोर रॉयल देन द किंग वाली बात है ना. वी आर कन्वर्ट्स. तो कन्वर्ट जो होता है वो ज्यादा एक आइडेंटिटी का उसका प्रॉब्लम होता है. हमने ये प्रूव करना था जिन्ना साहब ने, वी आर नॉट हिंदूज, वी आर मुस्लिम्स. प्रूव हो गया. नाउ वी आर ऑल द टाइम ट्राइंग टू प्रूव वी आर नॉट इंडियंस, वी आर पाकिस्तानीज. ये हमारी नेगेटिव आइडेंटिटी है प्रॉब्लम. क्योंकि आप जब पब्लिक में जाएं तो बाकियों को तो नजर नहीं आता कि ये मुसलमान, ये इंडियन है या पाकिस्तानी है. उन शक्लों से तो हम एक ही जैसे नजर आते हैं. बट वी आर ऑल इनटू दिस. और वो हमें इंडियंस मुझे कहते हैं कि हम हैं तो एक, और मैं कह यार ना कहा करो. पाकिस्तान में वो समझते हैं कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान खत्म हो जाए. वो दे वांट टू एम्ब्रेस यू, यू वांट टू ड्रॉ योर बॉर्डर्स, and both are doing it with the best of intentions. So that's the problem कि पार्टीशन ने ये दो साइकोलॉजीज बना दी हुई हैं और हमारा साइंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. एक साइंटिस्ट जिसने नोबेल प्राइज किया है उसको तो हम, उसका तो सत्यानाश हमने कर दिया ना. और दो और यहां से साइंटिस्ट थे जो इसी धरती से गए थे. वो क्योंकि हिंदू थे तो उनका हमने कभी जिक्र नहीं किया. पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये प्रॉब्लम है स्टेट का भाई. इसके अंदर कोई और नहीं पनप सकता. आई एम सॉरी टू से. सर ये हमाद हमारे स्टूडेंट है, ये जरा जेंडर बैलेंस को इक्वल करने के लिए हमाद अगर आप ऑन है तो. जी हमाद, आपका क्वेश्चन. हाँ जी बोलो जी. हमाद कितने? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. हाँ जी सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप आए, आपने अपना वक्त निकाला है और बहुत मजा आ रहा है और इन्फॉर्मेटिव सेशन है बहुत. सर मैं फार्म डी का स्टूडेंट हूँ 3rd ईयर में. ठीक है, तो 2nd ईयर में हमारा पाकिस्तानी स्टडीज का सब्जेक्ट था. सही है. तो हमारे जो प्रोफेसर थे ना, उन्होंने हमें सिलेबस से हट के चीजें पढ़ाई थी. सही है. उन्होंने कहा था सिलेबस तो यही है कि 14 निकात हैं कायदे आजम के, या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये सारी चीजें. ठीक है. तो उन्होंने एक जुमला कहा था. उन्होंने ये कहा था कि हमें पाकिस्तान दिया गया था, हमने लिया नहीं. ठीक है. उन्होंने ये कहा था कि जो मिस्टर जिन्ना थे, ही वाज अ पॉन एज वेल. उन्हें भी, उनकी भी फुल अथॉरिटी नहीं थी कि जिस तरह आपने अभी कहा कि वो लॉयर थे एंड ही वॉन अस अ केस. सही है. पहले तो मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा इस मामले में कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है. क्या वाकई में वो पॉन थे? मतलब कितनी अथॉरिटी थी कि जिन्ना साहब ने हमें ये पाकिस्तान दिलाया है? ठीक है. अब देखें यहाँ पे वंस अगेन वन शुड बी वेरी फेयर बिकॉज दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू. हुआ क्या था कि जब 2nd वर्ल्ड वॉर शुरू हुई 1 सितंबर 1939 में, तो 3 सितंबर को वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड लिनलिथगो कमिटेड इंडिया टू दैट वॉर. ठीक है. जिसके ऊपर कांग्रेस ने शोर मचाया. कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज थी कई प्रोविंसेस में उस के, without consulting the elected representatives of the people of India, how can you commit us to a war which is not ours? हम तो खुद कॉलोनी है. तो 7 सितंबर को जिन्ना साहब गए लिनलिथगो को मिलने और कहा कि देखो, अगर तुमने कांग्रेस को इस थ्रेट को इन हालात में कंटेन करना है तो तुमको मुस्लिम लीग की इंपॉर्टेंस और मुसलमानों की इंपॉर्टेंस को मानना पड़ेगा और हम तुम्हारा साथ देते हैं जंग के दौरान. तो जिन्ना साहब then negotiated a position for himself and for the Muslim League.
कि कांग्रेस का जो कैंपेन है कि अंग्रेज जो हैं वो हमें इस जंग में ना धकेले, हमें दे शुड हैंड ओवर पावर टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इसको अपोज करना है तो वी विल हेल्प यू बाय सपोर्टिंग यू। और जिन्ना साहब ने मुसलमानों की भर्ती जो है फौज के अंदर अपनी एफर्ट से भी करवाई एक, और क्विट इंडिया मूवमेंट जब गांधी ने शुरू की तो वो सारे लोग जेल में डाल दिए गए, इन्होंने उसको बहुत सिवियरली क्रिटिसाइज किया और अंग्रेजों का साथ दिया। अब आप कह सकते हैं कि जिन्ना साहब की ब्रिलियंस है ना कि अगर पाकिस्तान लेना है तो पाकिस्तान हिंदुओं से तो न ले सकते, लेना तो अंग्रेजों के साथ है। अंग्रेजों की कमजोरी है कि दे नीड समबडी अगेंस्ट कांग्रेस, सो इफ यू प्ले दैट कार्ड इन अ चेस बोर्ड यू आर द विनर। मैंने एक जो मेरे पहले पहले इंटरव्यू हुए हैं ना वो आफ्ताब इकबाल ने किए हैं, मैंने उन इंटरव्यूज में कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 1 घंटे के लिए भी कभी अंग्रेजों के अपोज नहीं किया, 1 घंटे के लिए। जिस दिन कह दोगे ना 1 घंटे के लिए मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों को कहीं भी अपोज किया है तो मैं अपनी सारी डिग्रियां जला दूंगा। तो ये फैक्ट है, किसी ने चैलेंज नहीं किया। इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलके पाकिस्तान लिया है, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें वो पाकिस्तान दिया जो कमजोर हो, ताकि यहां से जाने के बाद इस इलाके में अगर उन्होंने इन्फ्लुएंस रखना है तो एक ऐसी स्टेट हो जो वेस्टर्न पावर्स की मदद चाहे। और क्योंकि अंग्रेज खुद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाह हो गए थे, तो हु वाज द वेस्टर्न पावर हु कुड देन हेल्प यू वर द अमेरिकन्स। और अमेरिकन के जरिए इन्होंने जिहाद कराया ना अफगानिस्तान का, किस स्टेट के जरिए करवाया? पाकिस्तान के जरिए करवाया। तो अब आप देखेंगे वेस्टर्न पावर्स ने ज्यादा पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है या जिन्ना साहब ने अंग्रेजों की कमजोरी को एक्सप्लॉइट बेहतर किया है। ऑल दिस इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, लेकिन यू आर राइट, he was a pawn willingly but in the hope that he'll get something as a return, and he got Pakistan, so credit भी तो देना चाहिए ना। सर जस्ट मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें कुछ। जिस तरह आपने ये कहा कि उन्होंने विलिंगली वो पॉन रहे ताकि वो मुसलमानों को एक अलग से एक इस्टेब्लिशमेंट दिला सकें, अपना एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जहाँ पे वो लोग ना आज़ादी से रह सकें, ठीक है। सो व्हाई नॉट, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया कि उन्होंने हरी क्यों किया इतना? मतलब वो थोड़ा और अरसा ले लेते, थोड़ा इसको डिले कर देते, इसको डिले करके कोई एक प्लान करते तो शायद पाकिस्तान आज बेहतर ना होता। उन्होंने प्लान क्यों नहीं किया? मतलब कोई आइडिया एक होता है ना। अच्छा ये बात है, ये बड़ा मुश्किल है कभी भी कहना। हाइंडसाइट ऑफ, इसे कहते हैं विजडम ऑफ हाइंडसाइट। यू थिंक कि उनको टाइम ज्यादा लेना चाहिए था, उनके उस मौके पे शायद हर सेकंड वाज इंपॉर्टेंट टू मेक यूज ऑफ इट। सो वी कांट जज हिम बाय आवर इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। आप ये भी कह सकते हैं कि जिन्ना साहब की इस 2 नेशन थ्योरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि 1/3 मुस्लिम्स वो इंडिया में छोड़ रहे थे और छोड़े गए। 30 मार्च 1941 को कानपुर में, कानपुर ये यूपी के अंदर है ना, कानपुर के अंदर मुसलमानों ने उन्हें घेर लिया कि भाई आपने जो ये 1940 का रेजोल्यूशन पास किया है तो ये तो उन इलाकों में पाकिस्तान बनेगा जहां पे मुसलमान ऑलरेडी है मेजॉरिटी में और उनकी गवर्नमेंट्स हैं, तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो जिन्ना साहब का जो जवाब है मेरी किताब में पढ़ लें और बाद में रेफरेंसेस को चेक कर लें। उन्होंने कहा कि आई विल मेक द मुस्लिम्स टेस्ट मार्टरडम and get smashed. 2 crore Muslims get taste martyrdom and get smashed. कि मैं उन्हें कुर्बान कर दूंगा और उनको तबाह कर दूंगा in order to liberate 7 crore. अब ये आर्गुमेंट, इसे मैं कहता हूं यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। Was it the greatest good of the greatest number? Well, in one way, 2/3 got Pakistan, 1/3 could not. But what about all Muslims getting a better deal? ये आप कह रहे हैं ना, शायद ये आपका
कहाँ गए यार? वेयर इज दिस जेंटलमैन हु वाज टॉकिंग? हाँ सर यही हूँ मैं। यस यस, वो मूव करता रहता है आपका। सो आई एम ट्राइंग टू से कि 1/3 तो वहां ही छोड़ा है, और अब जो बीजेपी जिन्हें तंग करती है वो उन मुसलमानों को करती है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? इसके बरक्स अगर आप कहते हैं कि हम रसूल के फॉलोअर हैं, तो जब उन पे मुसीबत आई थी उन्होंने सबको वहां से निकाला, और पता नहीं हजरत अली को वहां पे छोड़ा था, और हजरत अबू बकर के जरिए ही वॉज द लास्ट वन टू लीव। हाँ जी, तो हमने तो सुन्नत फॉलो नहीं ना की, हमने जहां पे हम मेजोरिटी में थे वहां पे आ गए, और जो मिनोरिटी में 1/3 थे, 30 करोड़, एक्चुअली 2 करोड़ गलत उन्होंने कहा था, 30-35 करोड़ वहां पे उन्हें वहां छोड़ा है जो कमजोर थे। तो ये भी मैं कहता हूँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिफाइड नहीं है। उन सारों को फिर लेके आते और उन्हें अकोमोडेट करते पाकिस्तान में, तो हम कहते 2 मुल्क बन गए हैं, एक हिंदुओं का है एक मुसलमानों का है। आपने वहां क्यों छोड़े फिर? अब वो हिंदू कहते हैं कि अगर पाकिस्तान बना था मुसलमानों के लिए, तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनको भी निकालो। उनको तो बचाया नेहरू ने और गांधी ने, जिन पे हमले ये कर रहे थे हिंदू मासबा वाले। उन्होंने कहा नहीं, जो यहाँ पे रहना चाहता है अपनी खुशी से, ही शुड बी इक्वल सिटीजन्स। तभी तो उन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया। लेकिन ये सारी बातें पाकिस्तान में तो बताते नहीं ना, क्योंकि एवरीथिंग, जिना साहब कैन नेवर मेक एनी मिस्टेक, उनसे तो गलती हो नहीं सकती। और मैंने कहा रसूलुल्लाह इज वन पर्सन, वी कैन ऑल एग्री, लेकिन एटलीस्ट अमंग द सुन्नीज हजरत उस्मान पे भी तनकीद है, मौदूदी की, बाकी खुलफा के भी पॉलिसीज पे डिस्कशन होती है। इमामी थेरी जो शिया थेरी है उसमें नहीं हो सकती, बिकॉज द इमाम इज परफेक्ट, लेकिन सुन्नियों में तो है। तो जिना पे क्यों नहीं हो सकती यार? आपने रसालत वाली पोजीशन ही दे दी हुई है ना, आई एम सॉरी टू से, कि यू कांट डिस्कस हिम क्रिटिकली। ये हमारी लैक ऑफ डेमोक्रेसी है ना, ये लैक ऑफ डेमोक्रेसी है। वहां नेहरू और गांधी के ऊपर जो हिंदू राइट है रोज गालियां दे रहा होता है। जी सर, नॉट अ गुड थिंग टू डू। हाँ जी, आगे सर ये अगला सवाल। सर ये सुंदोस है, ये भी डाउ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, और काफी देर से ये क्वेश्चन जो है ना उन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ था, तो सॉरी कि अगर अगर आपको लगा हो कि मैंने इंटरप्ट किया है। सुंदोस आपका क्वेश्चन। नहीं नहीं, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कर दिया करो इंटरप्ट, आई एम अ वेरी दरवेश पर्सन, बातें करें। और इससे तो कहते हैं कैप्टिव ऑडियंस। क्लास पढ़ाते हुए मुझे इतनी देर हो गई है कि बड़ा मजा आ रहा है टू फाइंड पीपल लिसनिंग टू मी। टीचर का तो मजा ही ये है दैट यू आर टॉकिंग टू स्टूडेंट्स। हाँ, बात करें, कौन साहब है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अच्छा। मेरा क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान में स्पेशली मेजर सिटीज में हम काफी ऐसी नोटिस करें, और आजकल रिसेंटली काफी ज्यादा होता जा रहा है कि पाकिस्तान में मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट उन चीजों में जो कॉमन पीपल की थी उसमें ज्यादा होती है, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स हो गए, स्कूल कॉलेजेस हो गए, या ड्रामाज हो गए जो मिलिट्री बना रही है। तो आपका और आजकल लोगों की थिंकिंग भी है कि जैसे इमरान खान या कोई भी डिसीजन पाकिस्तान में डेमोक्रेटिकली होते हैं, ये सब मिलिट्री की तरफ से होते हैं, पाक आर्मी की तरफ से होते हैं। तो आपका आर्मी के बारे में या उनकी इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के लिए इस बारे में क्या ओपिनियन? देखो, मुझे पाकिस्तान भी जाना होता है, तो मेरी जान मुसीबत में ना डाल देना इस किस्म के सवालों के। लेकिन लोग कहते हैं जी कि मुल्कों की आर्मी होती है, पाकिस्तान की आर्मी का मुल्क है। तो मेरे ख्याल जो जवाब लोगों ने दिया है मुझे लगता है खासा मुनासिब है, ये दैट इज इनफ। ठीक है, वो इस वजह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस भी तो बिल्कुल नालायक है ना। पाकिस्तान की जमहूरियत को मैं कहता हूँ ये औरंगजेब की जमहूरियत है, कि अगर मैं किंग हूं ना तो तीनों भाइयों को मार देना जो है मेरा हक है। तो ना ऑपोजिशन को टॉलरेट मैं करता हूँ, ना ऑपोजिशन जो है हुकूमत को टॉलरेट करती है। इमरान खान के खिलाफ रोज नहीं हो रहा होता, एंड इमरान खान इज रनिंग देम ऑल डाउन ऑल द टाइम। अभी हमारी असेंबली के अंदर वो अब्बासी साहब कह रहे थे कि मैं तुम्हें जूतियां मार मार के, स्पीकर ऑफ द असेंबली को यार, ये अभी हुआ है। और 2 इनकी जो थी अपना लेडी मेंबर्स, वो किसी शो पे आई तो एक दूसरे को
ऐसी ऐसी उन्होंने गालियां दी कि मर्दों के बस की बात नहीं थी। तो आप इसका क्या करेंगे? हाउ विल यू हैंडल दिस पीपल? इनका सत्यानाश कर दिया इन्होंने अफगान जिहाद के बाद, क्योंकि माल इतना आ गया, गन कल्चर आ गया। मौलवी, मैं जाके खुद जुम्मे रात का खाना मौलवी साहब को दिया करता था। अब मौलवी के साथ आंख नहीं आप मिला सकते कि पीछे 10 बंदे ना भेज दे आपके, ये है होंदा कौन है। तो ये दुनिया ही बदल गई हुई है ना। मसला मसला ये है कि पाकिस्तान को तो इन्होंने इतना ज्यादा वो कर दिया, रेडिकलाइज्ड और साथ साथ ब्रूटलाइज्ड भी। मुझे याद है जब व्हेन आई वाज अ यंग किड, कॉलेज गोइंग, ये वो, तो हमारे मोहल्ले में भी होते थे इस्लामिस्ट। उनकी स्टोरी सुनने के लिए सिर्फ उन्हें चाय पिलानी पड़ती थी। दे वर जस्ट अ पैक ऑफ जोक्स। अब इस्लामिस्ट जो हैं, वो लबैक वाले जो हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को उनके घुटने लगवा लेते हैं। तो ये सब स्टेट ने किया है। महल ये इस बात की जवाब, ये आर्मी के पाले हुए लोग हैं या स्टेट के पाले हुए लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। ये मसला है। चलें, अब किंजा सर, ये हमारे फार्मेसी की स्टूडेंट हैं, किंजा गिलानी, आप क्वेश्चन कीजिए। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है आपसे। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये कि जिस तरह के आपने बोला कि पहले पुराने ज़माने में कायद आज़म जो थे और बाकी जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे, जिस तरह कायद आज़म खुद एक इस्माइली थे। तो अब क्या हो गया, अब क्या चेन ऑफ रिएक्शन हुए कि माइनॉरिटीज के साथ जो जिस तरह का बिहेवियर है वो मतलब किस तरह डेवलप हुआ है? बात यह है कि पहले आपने इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म की गेम खेल के यहाँ के सब हिंदू और सिखों को निकाल दिया, तो यहाँ पे सिर्फ मुसलमान रह गए मोरलेस। एक छोटी सी क्रिश्चियन कम्युनिटी है और एक बहुत छोटी सी हिंदू कम्युनिटी भी है। ये दो माइनॉरिटीज हैं आपकी, एंड अहमदीज इज अनदर माइनॉरिटी। ये तीन बड़ी आप कह सकते हैं। बाद में मसला हो गया कि इफ दिस इज अ स्टेट फॉर मुस्लिम्स, हु इज अ मुस्लिम? ये नया क्वेश्चन है ना। मुसलमानों के लिए मुल्क तो हमने बना लिया, फिर बाद में सवाल उठता है विच इस्लाम वी विल हैव, हु इज अ मुस्लिम? तो पता लगा कि मुनीर रिपोर्ट के अंदर उन्होंने लिखा है कि एक ही फिरके के दो मौलवी कुड नॉट एग्री ऑन अ डेफिनेशन ऑफ अ मुस्लिम। तो मौलवियों का कमाल है झगड़ा कराना और अपने नंबर बनाना। वो रोज ये कर रहे होते हैं, आप जाके देख लें। कभी गांधी के खिलाफ बोल रहे होते हैं, कभी वो एक है पता नहीं कारी मसूद हैं या whatever his name, वो बोल रहे होते हैं अगेंस्ट इंजीनियर अली मोहम्मद। अली मोहम्मद is speaking against all the rest, and this is their way of living। यानी इनकी जिंदगी में अब ये मुसलमानों का झगड़ा ये है ना, मिनॉरिटीज का तो चांस ही कोई नहीं कि यहाँ पे कभी कभी कोई मिनॉरिटी को कोई पोजीशन यहाँ पे मिल जाए। उन्हें टॉलरेट ही कर लें तो ये बहुत बड़ी बात है। उनके चर्च ना जलाएं और उनके मंदिरों, अब हमारे कुछ मंदिर भी बनाते जाते हैं, साथ ही सिंध से लड़कियां भी उठा लेते हैं। एक तो प्रॉब्लम यह है कि यू डोंट हैव अ स्टेट which is able to run the society in a coherent manner। दोनों चीजें हो रही हैं। इस्लामाबाद में बना दिया हिंदू मंदिर, भाई यार क्यों बनाया आपने कि जी यहाँ पे हिंदू हैं? मैंने कहा ये ना हो कि पता लग जाए यहाँ पे हिंदू हैं, उनके घरों में चले जाए मारने उन्हें। जब तक वो बेचारे छुपे हुए थे पता नहीं था लगता। 2017 आई वॉज इन इस्लामाबाद। तो मेरे दोस्तों को पता है कि म्यूजिक का मुझे बहुत शौक है, तो उन्होंने कहा जी आज शाम हम यहाँ से म्यूजिशियंस आपके लिए लाएंगे। It turned out 2-3 of them were actually Hindus. Their families had not emigrated। मुझे पता ही नहीं था कि हिंदू यहाँ पे भी रहते हैं। अब अगर हिंदू उनका बन गया और नुमाया हो गया कि हिंदू हैं, तो मुझे डर है कि उन पे हमले ना शुरू हो जाए। बट आई होप आई एम रॉन्ग। सर इंशाल्लाह you will be wrong। हाँ हो या ठीक है, आई होप आई एम रॉन्ग। हाँ
उसामा, आपका क्वेश्चन था कोई? जी उसामा, क्वेश्चन कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम काशान उसामा है एंड थैंक्स टू सर जमशेद एंड यू, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन है ये सर। जस्ट कैरिंग फॉरवर्ड विद द नोट दैट यू ड्रॉप के आपने कहा कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन नहीं आया हमारी सोसाइटी में या हमारे एटलीस्ट मुल्क या सब कॉन्टिनेंट में। तो सर आपके ख्याल में कॉलोनियलिज्म का और कितना रोल है इस रेवोल्यूशन के ना आने में? बिकॉज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि दो तरह के रिस्पॉन्सेज यूजली आते हैं। एक तो ये आता है कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स की ये जो हालात हैं, जैसे फैनन की कुछ थ्योरीज हैं, वो कहती हैं कि वो ऐसे रहेंगे। मतलब इस तरह की, मतलब ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं वो इनस्टेबल होंगी, उनमें इस तरह की ब्यूरोक्रेसी वगैरह होगी। दूसरा ये व्यू आता है कि नहीं जी, हम इनहेरेंटली हमारे अंदर कोई ऐसी, हम एज अ मतलब कॉम एज अ नेशन इनहेरेंटली हमारे अंदर कोई ऐसी खामी है, वो है कि हम इनलाइटेंड नहीं हो पाए या वो नहीं हो पाए। तो आपके ख्याल में कितना रोल है कॉलोनियलिज्म का इस सारी चीज में? थैंक यू। देखिए यार, कॉलोनियलिज्म के आने के बाद ही यहाँ पे साइंस की इंट्रोडक्शन हुई। जो उससे पहले का पीरियड है वो तो अनसाइंटिफिक है, वो तो ट्रेडिशनल है, कन्वेंशनल है। हाँ जी, जहाँ पे मदरसों के अंदर जो सारी एजुकेशन है वो कुरान शरीफ और हदीस का इल्म प्लस फलसफे में वो पढ़ते थे, क्या इमाम गजाली को शायद पढ़ते थे, एंड दैट्स ऑल। हिंदुओं के जो धर्मशाला थे उसके अंदर वही पुरानी थियरीज थी, वो आज से 2000 साल पुरानी। साइंस केम टू दिस रीजन along with the colonial powers, first as military technology, जिससे उन्होंने इस इलाके को काबू किया with better fighting technology, better organization of army, better weapons. So in that sense, बाद में जो आम स्कूल और कॉलेज खोले जिसमें से पढ़ लिख के लोग आगे आए हैं और फिजिक्स और ये और वो उन्होंने पढ़ा है, तो ये तो उसी उन्हीं के दौर में आए हैं। ये पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जो है, मैं समझता हूँ अब पिट चुकी हुई है, बिकॉज यू हैव टू लुक एट सम एग्जांपल्स। जापान वाज डिस्ट्रॉयड बाय द सेकंड वर्ल्ड वॉर, इट रोज अगेन एंड बिकेम द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। साउथ कोरिया की जो कोरियन जंग है, आप जरा देखें कितने लोग मारे गए। कोरिया अगेन रोज। हाँ जी, चाइना के कितनी तबाही हुई थी, पहले जापानियों ने की, फिर जो उनकी सिविल वॉर हुई, चाइना की इकोनॉमी कहाँ पहुंच गई है जी। और वहां पे तो चाइना को सारों को तो इन्होंने अफ्यूम के ऊपर लगाया हुआ था ब्रिटिश ने। अफ्यूम ट्रेड के खिलाफ 1857 में वहां पे अपराइजिंग हुई थी, जिस तरह हमारे 1857 में हुई थी एट द सेम टाइम, क्योंकि इन्होंने अफ्यूम पे लगाया हुआ था चाइनीज को। हाउ डिड दे गेट ऑन देयर फीट? आप और एग्जांपल देख दें, 1965 तक सिंगापुर वाज अ फिशिंग विलेज, इसका वो दुनिया का हब है इकोनॉमी का। सो ये पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी मैंने भी पढ़ी और पढ़ाता था, बट नाउ आई थिंक दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ फीलिंग, विक्टिमहुड की ये थ्योरी है। We were victim once. Colonial powers didn't come to our part of the world to do us any good. This is true. But while ruling, they introduced institutions, practices, procedures, which they have left behind and which are the basis of whatever you call democracy. वरना 3000 साल जो हिंदुस्तान के हैं, इंक्लूडिंग द मुस्लिम पीरियड, डेमोक्रेसी की कौन सी इंस्टीट्यूशन है भाई? एक भी बताओ जहां पे इलेक्शन होते थे, पार्टीज होती थी। ना हिंदुओं के दौर में थी, ना मुसलमानों के। तो ये पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ये एक मातमी थ्योरी है। मातम करने का शौक हो तो पोस्ट कॉलोनियल भी बड़ा सूट करता है आपको। बट इफ यू वांट टू बी अ बिट क्रिटिकल, तो आप देखें बाकी दुनिया क्यों आगे निकल गई। हिंदुस्तान में मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर वो मनुस्मृति जो है उनकी बुक ऑफ लॉ, अगर उसके मुताबिक वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते, तो ब्राह्मण को अनलिमिटेड वोट्स होने चाहिए और जो दलित है उसको तो वोट की जरूरत ही कोई नहीं है, तो देना ही नहीं चाहिए। उन्होंने वन मैन
वन वोट करके कम से कम पॉलिटिकली तो सबको इक्वल कर दिया है ना। और ये इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जहां पे हो कास्ट सिस्टम, वहां पे पॉलिटिकली कम से कम वोट वाइज तो उन्होंने एक एक कर दिया है। सोसाइटी एक दूसरे को कैसे ट्रीट करती है एज इक्वल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इट टेक्स अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। हमारे यहाँ ये तकरीबन यही हालत है। ये एक हमारा मिनिस्टर जो है बेचारा किसी आम से बैकग्राउंड से आ गया था, मैंने उसके मुतालिक कहते हुए बार बार सुना है, वो ऐसे नाई है। हाँ जी, ये हमारी जो आते हैं ये आम है। हम हिंदुओं को ब्लेम करते हैं, बट वी आर, मैं कहता हूँ वी आर हिंदू मुस्लिम्स, वी आर एक्चुअली हिंदू मुस्लिम्स। हिंदुओं की सबसे बुरी चीजें हमने ले ली और मुसलमानों की भी सबसे बुरी चीजें ले ली। वरना जो अरब उरब हैं वो इस तरह नहीं करते जैसे हम। मैं तो हैव बीन एंड हैव हैड अरब फ्रेंड्स ऑल माय लाइफ हियर यार। पैलेस्टाइन मूवमेंट में यहाँ पे मार्चेस में हिस्सा ले लेके, अब तो आई मीन इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। आई मेट ऑल ऑफ देम। उनका इस्लाम ठीक था बट दे लिव्ड नॉर्मल लाइव्स। ये हमारा इस्लाम इज एन एक्स्ट्रा प्रॉब्लम फॉर अस। इसको जब तक आप नॉर्मलाइज नहीं ना करेंगे, सऊदी अरेबिया में तो अब ये ट्रेंड शुरू हो गया है और हम क्योंकि हमेशा मांगते हैं तो आई होप ये वाला असर हमारे में आ जाए। और ईरान वाली स्टेट जो है वो जिस दिन कमजोर होगी, आई वुड बी वेरी हैप्पी। मौलवियों का होल्ड नहीं होना चाहिए। देखो ये सारा इस्लामिक स्टेट का जो प्रॉब्लम खड़ा हुआ है ना इस दुनिया में, ये ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद हुआ है। इन्होंने इनकलाब करके सारी दुनिया में मुसलमानों के झगड़े जिंदा कर दिए। मुझे याद है एज अ किड जब मुहर्रम होता था तो सुन्नी ये लगाते थे सबीलें और शिया जो है वो मातम उतम करते थे। इन्होंने वो वहां पे तबर्रा भी करवाना शुरू कर दिया। अबू बकर उमर उस्मान के खिलाफ नारे नूरे लगे तो फिर दूसरी तरफ से रिएक्शन हुआ। उसके बाद क्योंकि सुन्नी ज्यादा, उन्होंने अपनी इनको कॉर्नर कर दिया। लेकिन अब मैंने ये आपको कह दिया, अब देखना सारा शिया लॉट मेरे खिलाफ भी हो जाएगा। करे आदमी की। हाँ जी सर ये एक हमारे स्टूडेंट है मोइज, ये भी फार्मेसी के स्टूडेंट है। मोइज प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। हाँ जी बोलो। सर मैंने ये पता पूछना था कि मतलब आप कह रहे थे कि जो कायद-ए-आज़म जो 1940s में जो सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया था, इसकी वजह से मतलब यार आपकी आवाज सही नहीं आ रही। पाकिस्तान है और जो इंडिया की सिचुएशन है जिसमें केओस है। सर ये कह रहे हैं कि जो कायद-ए-आज़म थे उन्होंने, एक सेकेंड, इनका ये क्वेश्चन है कि ये जस्ट क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटी बनी थी वो 1940s में बनी थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कि वो पाकिस्तान का बना सकें। तो वो तो खैर सर आपकी वीडियो सुन के उसका आंसर मैं भी कर सकता हूँ कि जिन्ना वाली आप बुक पढ़े, उसमें जो है चारों जो फेजेस हैं वो यानी कि बड़े अच्छे बताए गए हैं। सर ये अलमशा है, अलमशा आपका क्वेश्चन, अलमशा आप आ जाइए, क्वेश्चन कीजिए। हाँ जी सर मेरा ये क्वेश्चन था, मतलब हमें शुरू से मतलब हमारा कोर्स डिजाइन हुआ होता है, हमें मतलब एक तरह की चीजें पढ़ा रहे होते हैं। आई टॉक अबाउट माई सेल्फ। तो यही मतलब एक चीज दिखाई थी हमें पाक स्टडीज में, एक चीज एक ही तरीका था, बस यही सच है। दैट्स हाउ दे टॉट अस। अच्छा, उसके बाद व्हेन आई लाइक फर्दर ऑन, उसके बाद आई ट्राइड रिसर्चिंग माई सेल्फ, तो मैंने ये देखा कि देयर इज अ होल अनदर साइड टू दैट। मतलब उसमें जो ओके सम पार्ट ऑफ इट इट्स ट्रू, लेकिन जो काफी चीजें हैं नॉट इवन देयर। लेकिन we have the evidences, we have your books, we have YouTube, the internet, तो ये सब इस तरह स्टूडेंट्स को पढ़ाने की like what's the point? एक्सेस तो कर लेंगे वो, but what's the point? बात ये है कि पाकिस्तान इज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट। आइडियोलॉजिकल स्टेट जो है वो अपनी आइडियोलॉजी को ब्रेन वॉशिंग के तरीके से इस्तेमाल करती है। अब इंडिया के अंदर बीजेपी अंडर हैंड यही कर रही है, वरना जो नेहरू की और वो जो इंडियन स्टेट थी उसके अंदर जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे उनमें से कई
ये लेफ्ट लीनिंग प्रोफेसर थे, प्रोफेसर इरफान हबीब, क्या नाम है यार, कई बड़े बड़े, मुहिबुल हसन, ये सारे बड़े नाम थे जिन्होंने वहां तारीखें लिखी और उन्होंने हर एक की जो कंट्रीब्यूशन है उसको अकोमोडेट किया। मतलब आप देखें ना, जिना अली किताब में एक चैप्टर मेरा है, चैप्टर के अंदर बहुत डिस्कशन है ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो 7 जिसका बहुत जिक्र होता है। हाँ जी, तो वहां पे जो हिंदू मेंबर्स थे, क्योंकि 46 में ये इलेक्ट हुई थी ना कंस्टिट्यूएंट असेंबली, तो जब पाकिस्तान बन गया तो जो इलाके पाकिस्तान को मिले, मसलन इंक्लूडिंग ईस्ट पाकिस्तान, वहां पे कांग्रेस की टिकट पे जीते हुए हिंदू मेंबर्स भी पाकिस्तान कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने। उन्होंने कहा कि जी जिन्ना साहब ने तो 11 अगस्त को कहा था कि ये सेकुलर स्टेट होगी, तो उसके फिर जब जवाब में ये मुस्लिम लीगी या मुस्लिम बोले हैं ऑफ ऑल सॉर्ट्स, इन्होंने कहा जी आपको ये कहा था, हमें ये कहा था, तो हम तो 75% हैं, तो यहाँ पे तो हम मुस्लिम स्टेट बनाएंगे, बात खत्म हो गई। मेजॉरिटी, उन्होंने कहा जिन्ना साहब हर एक को, पंजाबी में कहते हैं पीर सब नु पुत्र देंदा है। वो जो फैमिलीज जाती है ना पीर के पास, तो वो कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें, वो कहता है तुम्हें बेटा हो जाएगा, तो वो सबको ये बेटे का वो प्रॉमिस कर देते हैं। तो वो जिन्ना साहब ने जो उनके पास आया वैसी प्रॉमिस दे दी। पीर साहब मानकी शरीफ ने कहा कि ये होगा, उन्होंने कहा जी कैसे हो सकता है 75% जहां मुसलमान हो तो आपकी एक भी पॉइंट के खिलाफ कुछ चीज हो। किसी मेरे जैसा आ गया तो उन्होंने कहा नहीं यार पाकिस्तान, आप तो पता है डेमोक्रेसी तो हमारे ब्लड में है। अब मेरा झगड़ा और पीर साहब के हजारों फॉलोअर्स के साथ तो नहीं ना हो सकता, तो इसीलिए उन्होंने कैप्चर कर लिया, क्योंकि बेसिकली तो मस्जिदों के जरिए, जुम्मे के फतवे के जरिए, खुतबे के जरिए होल्ड तो सोसाइटी पे इन लोगों का ही है ना, मौलवियों का है, प्रोफेसरों का तो अपनी क्लास तक है। और वहां पे भी हमारे ज्यादातर प्रोफेसर जो हैं बेचारे नौकरी करते हैं, फैमिलीज पालते हैं, पता नहीं दिल में मानते भी नहीं, लेकिन क्लास में तो वही पढ़ाना पड़ता है ना, जिसकी वजह से उनको रोज उनकी फैमिलीज चलती हैं, उनका कारोबार चलता है। सो आई डोंट ब्लेम देम। चंद अच्छे टीचर हैं जो इनकरेज एक क्रिटिकल सोच भी रखते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम डोंट। अच्छा, ये सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। मोस्ट पीपल आर नॉट लुकिंग फॉर द ट्रूथ, most people are looking for convenient things. वो तो अगर स्टेट ही ज्यादा ट्रूथ अपहोल्ड करे तो कन्वीनियंस भी वही हो जाती है, लेकिन अगर स्टेट इतना झूठ बोले तो कन्वीनियंट झूठ हो जाता है, ये मसला है। वरना ह्यूमन नेचर के अंदर रेजिस्ट करना एक खास क्वालिटी है, हर एक के अंदर नहीं होता। इसकी मैं आपको जोक सुना देता हूँ। पंजाब पीपल्स पार्टी के एक होते थे मिनिस्टर गुलाम हुसैन, गुजरात नहीं जेलम से। तो वो जब एक दफा टेररिज्म हुई ना ये अल जुल्फकार की, तो जिया साहब ने कई 100 वहां से निकाल दिए, तो उनमें से वो यहाँ पे भी आ गए अपना गुलाम हुसैन। तो गुलाम हुसैन वाज वन डे इन जर्मनी, तो लोगों ने कहा जी आप पाकिस्तान छोड़ के क्यों आ गए, ये उसने कहा बात सुनो, मेरा नाम गुलाम हुसैन है, इमाम हुसैन नहीं है। यानी कि मैं अपनी जान क्यों जाने दूं, मैंने वही बात करनी थी जो मेरी, मतलब मैंने अपनी जान बचानी थी। तो दैट्स, ये जोक भी है लेकिन ये रियलिटी है। मोस्ट पीपल डू नॉट हैव द करेज टू टेक अप अ स्टैंड ना, उसमें नुकसान बहुत होता है। जी सर, ठीक है। अब जो है सैम्यूल हैं हमारे साथ, ये भी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं। सैम्यूल, आप क्वेश्चन कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि व्हाई हमारी स्टेट जो है हेल्पलेस है इन फ्रंट ऑफ वायलेंट रिलीजियस पीपल, और स्टेट को उनकी बात क्यों माननी पड़ती है? स्टेट को उनकी बात क्यों माननी पड़ती है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। उसकी वजह यह है कि स्टेट की जो प्रायोरिटीज हैं, वो प्रायोरिटीज में
मजहब को इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों को चुप कराने में। इकोनॉमी तो हमारी सत्यानाश हो गई है, तो अगर वहां पे बोलना शुरू कर दें तो क्या कहें। पाकिस्तान जब बना था पहले दिन से पहले कायदे आजम कहा करते थे, फिर लियाकत अली ने तो ये पढ़ कि एवरीथिंग कि जो आप कहते हैं डेमोक्रेसी कराएं, इलेक्शन करवाएं, कि ये सारे लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये इंडियन एजेंट है। तो ये इस स्टेट की पुरानी नेचर है कि किसी को चुप कराना हो ना तो आप कुरान को कोट कर दो और मैं वहां पे क्या करूं। एक बहस हो रही है, मैं तो कुछ नहीं ना कर सकता, तो ये बहस ही किल कर देते हैं बाय ब्रिंगिंग इन रिलीजन। ये बहुत इजी आर्ट है ना। आप देखें जियाउल हक ने ये इस किस्म की कानून बनाए हैं ना, तो ये इलेक्ट होके जो गवर्नमेंट्स आती रही हैं, व्हाई डिडंट दे टेक अवे दोस लॉस, क्यों नहीं की? बिकॉज दे ऑल थिंक कि हम हु विल बेल द कैट, नॉट दे वॉन्ट, सब फॉर देम, उनकी हुकूमत चल रही है, सारा कुछ चल रहा है। मजहब की बुनियाद पे ये स्टेट बनी थी। इसकी जो आर्टिकुलेशन है उसके अंदर मजहब का रोल बड़ा आसान है एक्सप्लॉइट करना। ये जो है अपना आजकल तो इमरान खान तो हर वक्त उसने तो हद ही कर दी है। सॉरी यार, यू आर अ न्याजी बट दिस इज ट्रू। हाँ जी। लेकिन जब नवाज शरीफ थे तो जब व्हेन ही वाज इन ट्रबल तो उन्होंने कहा मैं 15th अमेंडमेंट के जरिए शरिया लॉ ऑफ द लैंड बना रहा हूं। व्हाट अबाउट दैट? ये तो जिया ने नहीं था किया कि लॉ ऑफ द लैंड शरिया को बना दिया जाए, उसने शरिया के चंद चीजें लाया था। तो व्हेनेवर इन ट्रबल इनवोक इस्लाम एंड गेट अवे, ये हमारा तरीका है। इसीलिए ये स्टेट इस्लाम को इस्तेमाल करती है, बिकॉज लैंड रिफॉर्म के खिलाफ भी आप इस्लाम को इस्लाम करते हैं। तो प्रॉपर्टी ओनर्स, मैंने जो हमारी अपर क्लासेस है उनमें भी मेरे दोस्त तो हैं, उनकी जिंदगी में कोई ना इस्लाम का कोई तल्लुक है। ये अगर वो नमाज पढ़ते भी हैं तो वो एग्जीबिशन के लिए पढ़ते हैं ताकि लोग देख लें और हमारा कारोबार जो है वो चलता रहे। इट्स वेरी, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल इस्लाम दे फॉलो। मैंने एक दफा किसी ने मुझे बुला लिया अपने घर, मेरे स्टूडेंट ने, आई एम गिविंग यू पर्सनल एग्जांपल्स। तो वो कोई शायद जोहर की नमाज, दोपहर की नमाज जोहर की है ना जी, हाँ जी। तो मैं बैठा हूं तो सारे नमाज पढ़ने शुरू हो गए। तो मुझे कहते हैं कि आप भी, मैं कहा नहीं यार आप पढ़ लें मेरे बिहाफ पे, आई एम टू मच ऑफ अ सिनर टू गेट अवे विद वन नमाज। मेरे आई एम कंडेम्ड टू हेल, मुझे छोड़ो। हाँ जी। और नमाज पढ़ ली। बाद में पता लगा कि दे आर ओनर्स ऑफ, ये भट्टे जो होते हैं, भट्टा जानते हैं आप, जहाँ पे ईंटें बनती हैं। बाई चांस बहुत जालिम लोग होते हैं, बहुत हाँ जालिम लोग होते हैं वो तो। उनसे फिर मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये सुना है कि ये जो आपके भट्टा मजदूर हैं, दीज पीपल आर बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर होता है कि मेरे परदादा ने उधार लिया था, हाँ जी, और क्योंकि मेरे वालिद साहब उधार नहीं दे सके, लिहाजा मैं भी उनका मुलाजिम हूं या उनका गुलाम हूं, बिकॉज वी कैन नॉट पे बैक द डेट। तो मैंने कहा यार आप 5 वक्त की नमाजें और ये सारा कुछ करते हैं, तो रसूलुल्लाह की कोई हदीस नहीं है कि आप गरीबों के ऊपर कोई एहसान करें तो आपकी जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। ये जो आप करते हैं ये तो जुल्म है, ये तो दुनिया में होता ही नहीं है। उन्होंने पॉइंट ब्लैंक कहा, उन्होंने कहा बात सुनो यार, ये पता नहीं तुम कौन से हो, बस अगर हम इनके वो खत्म कर दें ये उधार है तो हमें चीप वर्कफोर्स कहाँ से मिलेगी। ऑन द अदर हैंड क्योंकि ये पैदा होते हैं मकरूज, तो जब इनको कोई जरूरत होती है तो हम इनकी मदद कर देते हैं। दे वर जस्टिफाइंग इट। अब इस किस्म की 5 वक्त की नमाजों को मैं एग्जीबिशन समझता हूँ। इफ दिस इज इस्लाम, आई हैव नो इंटरेस्ट इन इट। इट्स एग्जीबिशन यार। मैंने उस एग्जीबिशन में हिस्सा इसलिए नहीं लिया कि आई थॉट ये सारे क्रुक्स हैं। तो क्योंकि मैं नॉर्मली नमाज नहीं पढ़ता तो उनके साथ पढ़ के आई विल ओनली बी गेनिंग चीप पॉपुलैरिटी, आई डिडंट नीड इट। और जब बात हुई तो पता लगा वो तो बहुत जालिम है यार।
उनके क्या कहते हैं, ये जो बेचारे बॉन्डेड लेबर हैं, फैमिली वाइज जनरेशन आफ्टर जनरेशन दे हैव टू वर्क फॉर देम। पाकिस्तान में ये होता है, हालांकि स्लेवरी हैज बीन बैंड since a long time. This is not slavery of the classical type, but it's a form of slavery, isn't it? जी सर, तो बिल्कुल ये ये है, स्लेवरी है सर। ये बिल्कुल ऐसी है। हाँ। अच्छा सर, मैं सॉरी बोलूंगा अपने न्याजी होने पे। अब मैं सनिया को आने दूंगा कि सनिया आप आइए क्वेश्चन कीजिए। जिस तरह मैं अराई हूं, तो अब कोई जरूरी है कि सारे अराई जो हैं वो ये हो जियाउल हक हो? ऐसे तो नहीं होता। वो मियाँ इफ्तिखारुद्दीन जो बहुत बड़े लेफ्टिस्ट थे वो भी थे, मियाँ सर शफी थे, ये सारे खानदान बड़े एनलाइटन लोग थे। तो बिकॉज आई एम इस बिरादरी में पैदा हो गया हूँ, तो और उसमें एक बंदा बिल्कुल ही सारे कंडेम करते हैं, आई डोंट थिंक दैट्स द केस। होने ही नहीं चाहिए ऐसे। जी सर, अव्वल बस तो बिरादरी सिस्टम ही बकवास है यार। बिल्कुल एवरी सर। ह्यूमन बीइंग इज यूनिक, मैंने तो ये देखा है। Yes. एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक। सनिया एक आप घर के अंदर जी। मेरे दो बेटे हैं, बोथ आर सो डिफरेंट, हालांकि दोनों को हमने वी ब्रॉट देम अप मोर और लेस द सेम वे। सो यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल, ये वेस्टर्न फलसफे का बहुत बड़ी गेन है कि recognize the individual as the bearer of rights. Human rights should belong to the individual because he or she is a human being. ये बहुत बड़ी गेन है। Islamic human rights are no human rights. They are favors of God. But human rights are because we are human beings. आज तो बहुत बातें हुई हैं, कुछ और रह गया बताएं। सर बहुत कुछ रह गया सर। सनिया आपका क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग हैड एक्सेप्टेड कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में था, एंड इट वाज द लास्ट एफर्ट टू कीप इंडिया यूनाइटेड, बट नेहरू sabotaged it then. तो कायदे आजम शुड बी ब्लेम्ड या क्रेडिटेड, एंड इफ सो तो फिर हाउ? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल नेहरू नेवर sabotaged it. This is just mean propaganda. If you go through my book, we can have another session and then you can pose this question to me. I've shown that the cabinet mission plan was a non-starter. Look, it had three features. First of all, it grouped India into British India, yani British provinces, into three groups. Group A, B, and C. Group A was Hindu majority provinces. Group B were the northwestern Muslim majority provinces, and Group C were the eastern, yani Bengal Muslim provinces. Okay. So first of all, these were three groups. Every 10 years, the groups had the right to withdraw from the union as groups or as individual provinces. लेकिन you tell me कि स्टेट बनने से पहले उसके अंदर शिक है कि आप उसको छोड़ सकते हैं. Which state would be stable that way? एक. The second was that only foreign affairs, military, and communications would belong to the center, and it would have limited ability to raise taxes for these three services. All the rest will belong to the provinces. Now, that's another question. How can a state of the magnitude of India and its complexities carry out the spread of education, carry out industrial development, carry out, coordinated changes in the society if it doesn't have any powers and everything belongs to the provinces? Third, what was the third? This was the 2, 3, and this is always on my fingertips. The three groups
एंड चलो अब याद नहीं आ रहा, लेकिन लेट मी कंटिन्यू। एक और उसमें शिक थी कि पीपल वर इलेक्टेड also to the Constituent Assembly of India to make a constitution for India. Quaid-e-Azam kept on saying कि ये जो कैबिनेट मिशन प्लान अनाउंस हुई थी 16 मई 1946 को, until the 5th, अगर आप उनके बयान सुन लें तो वो ये है कि we will never ever accept cabinet mission plan, we want Pakistan। 6 को उसे कहते हैं मीटिंग इन कैमरा। मीटिंग इन कैमरा होती है कि पब्लिक नहीं होती, लेकिन मुस्लिम लीग की काउंसिल में उन्होंने कहा कि बात सुनो, तुम मेरी बात मानो, कैबिनेट मिशन मैन प्लान को एक्सेप्ट कर लो। वहां पे जाके भी वी विल कैंपेन टू, उन्होंने कहा कि ठीक है पाकिस्तान इज अवर गोल, लेकिन जरूरी नहीं कि कल पाकिस्तान बन जाए, बट while there we will work for Pakistan. Why did Jinnah had to say that? Because on the 4th of April 1946, when the cabinet delegation, उसमें 3 थे कैबिनेट मिनिस्टर्स भेजे गए थे, पैथिक लॉरेंस और यार आई एम वेरी बैड एट नेम्स, इवन at times I have forgotten my own name, so forgive me for that। हाँ जी, तो इन 3 मिनिस्टर्स ने जिन्ना साहब को कहा कि मिस्टर जिन्ना, convince us that East and West Pakistan together as one state will be militarily defensible, because if you can't, then you leave us no choice but to leave India united। तो मैंने आर्ग्यू किया कि वहां जिन्ना साहब ने सेंस कर लिया कि अगर मैं कैबिनेट मिशन प्लान नहीं मानता तो फिर तो ये कांग्रेस के पास पूरा इंडिया छोड़ जाएंगे। अब ये किसी ने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन जब आप किताब पढ़ेंगी ना मेरी, तो उसके अंदर वो रेफरेंस भी है, आप जाके चेक कर लें। जिन्ना रियलाइज कि he had no choice, either he accept the cabinet mission plan or then the Congress was threatening, the British were threatening that they will leave it to United India, यानी to the Congress। So ये threat थी। He accepted it on the 25th of June after he listened to the Congress rejecting it on the 25th also earlier in the day। तब तक ये वेट करते रहे, लेकिन उस प्लान के अंदर एक और सेक्शन भी था कि एवरीबॉडी विल गो टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली एंड फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया। जिन्ना साहब रिफ्यूज्ड कि मैंने उसमें नहीं जाना जब तक कि हमारी सारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी ना हो जाए। उनकी डिमांड्स क्या थी कि 50% मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन हो हर गवर्नमेंट के अंदर, जबकि मुसलमानों की परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 25% थी सारे हिंदुस्तान में। देन ना हाउ कैन यू स्टेबलाइज अ सिस्टम जिसमें एक ग्रुप को ओवर रिप्रेजेंटेशन मिल जाए? हाउ? और इफ एवरी 10 years the provinces can withdraw, then no government can actually plan for the future for whatever। The third argument is कि जब पाकिस्तान बन गया तो जिन्ना साहब ने क्यों नहीं फिर ऐसी डिसेंट्रलाइज स्टेट बनाई? कांग्रेस ने तो फिर अपने मिनिस्टर प्रोविंसेस जो है एक फेडरेशन बना ली जो आज तक चल रही है। हमने तो आके इलेक्टेड गवर्नमेंट्स डिसमिस कर दी, दोनों बंगाल की भी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की भी और सिंध की भी। हाँ जी, और जिन्ना साहब ने तो और क्या कहते हैं लियाकत अली खान ने तो कभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की परवाह नहीं की। So Pakistan became 100 times more centralized। आज तक 18th अमेंडमेंट पे झगड़ा है कि ये करनी है या नहीं करनी, पूरी नहीं है। एंड आई एम सेइंग कि पाकिस्तान अगर इतना सेंट्रलाइज्ड बना है तो इंडिया जैसी मैग्नीट्यूड इतनी बड़ी स्टेट
जब सेंटर के पास इफेक्टिव पावर नहीं होगी पूरी इंडिया को चलाने की, तो वो तो केओस हो जाएगी। एक प्रोविंस कोई झगड़ा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हाँ जी, हर जगह पे सेक्टेरियन झगड़े थे। Who would have the responsibility for the whole of India? So cabinet mission plan was, I would say, a paper exercise. ये अंग्रेजों की लास्ट कोशिश थी कि किसी तरीके से, हाँ, yes, the 565 princely states had to themselves agree to join this federation. अगर वो ना करें तो ये कैबिनेट मिशन प्लान चल ही नहीं सकती उनको। हाँ, sorry, let me withdraw that. The princely states surrendered only foreign affairs and defense, not the internal domain. अब सब समझे कि इंडिया कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हो जाता है, आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंजॉय का, तो ये 500 princely states कैन रिफ्यूज कि ये तो वी हैड नॉट अग्रीड कि हम यहाँ पे ये राइट टू वोट देंगे। तो कैन यू हैव राइट टू वोट इन सम parts of India and not in others? Because the princely states gave up only two things, defense and foreign affairs. बाकी तो all the freedom they retained. So ये तीनों चीजें जो हैं actually unworkable थी। कांग्रेस ने फिर ये डिसाइड किया कि if the Muslim League is creating problems at every stage, you know, इंटरिम गवर्नमेंट भी बनी थी तो रोज झगड़ा करते थे ये। इन्होंने एक ऐसा बजट बनाया जो सिर्फ हिट करता था बिजनेस कम्युनिटी को और इंडस्ट्रियल कमेटी को, और लैंड रिफॉर्म का उसमें जिक्र ही कोई नहीं। तो जब इस किस्म की कैबिनेट मिशन और कैबिनेट गवर्नमेंट इट्स अ कलेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, तो अगर हर बात पे झगड़ा हो रहा हो, ये मुस्लिम लीग ही है, ये कांग्रेस है, तो वो हुकूमत नहीं चल सकती। वहां पे फिर कांग्रेस ने डिसाइड किया कि दिस इज नॉट वर्केबल। लेकिन अब सारा वक्त जिन्ना साहब तो पार्टीशन ही चाहते थे ना, और वो कैबिनेट मिशन को अंडर वो जो डेलीगेशन का 4 अप्रैल 1946 का थ्रेट है, अंडर दैट थ्रेट दे एक्सेप्टेड इट। अनदर थिंग, जो सिख थे पंजाब के, उन्होंने कहा कि वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस बी ग्रुप, वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर जो खुदाई खिदमतगार की हुकूमत थी, वहां पे तो 96% मुसलमान थे अपना फ्रंटियर के अंदर। दे ऑल्सो डिडंट वांट टू बी पार्ट ऑफ ग्रुप बी। तो एक मुस्लिम प्रोविंस उसका हिस्सा नहीं था बनना चाहता, और एक मिनॉरिटी पंजाब की जो है उसका हिस्सा नहीं थी बनना चाहती। सो दैट्स व्हेन द कांग्रेस डिसाइडेड कि अच्छा, कांग्रेस ने कहा कि वी विल नॉट एक्सेप्ट द कैबिनेट मिशन बट विल गो टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। और उन्होंने 9 दिसंबर 1946 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली में अपना काम भी शुरू कर दिया, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर को उन्होंने पास भी कर दिया। हमने जाके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान बनने के कोई 1.5-2 साल बाद किया है, 7 मार्च 1949 को, और कॉन्स्टिट्यूशन जाके बनाई है 56 पे, जो अमल में नहीं आ सकी। पहली दफा इलेक्शन फेयर और फ्री पाकिस्तान में हुए 1970 में, तो पाकिस्तान टूट गया। अब आप किस स्टोरी को, पाकिस्तान की स्टोरी it's an amazing story of things happening on their own. आप कराते हैं इलेक्शन 1970 में, मैं तो I took part in that election। मेरे दोस्त के वालिद साहब सैयद अमीर हुसैन शाह लड़ रहे थे गुजरात से, तो मैं उनका सपोर्टर था। We were in university, I think, university, हाँ। तो अब there were 300 members elected. I think 13 were nominated. 30, क्योंकि ईस्ट पंजाब की पॉपुलेशन 55% थी, तो उनको मिले थे 162 सीट्स। इलेक्शन हुए तो दे 160, तो
300 में that means a majority. They had all the right under parliamentary democracy to form the government. हमने कहा कि हमने तो हुकूमत ही नहीं बनने देनी, तो उसके बाद सिविल वॉर हुई और पाकिस्तान टूट गया. अब हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट टू मी? पहले हिंदुओं की मेजॉरिटी हमने नहीं मानी, फिर मुसलमानों की मेजॉरिटी नहीं मानी, क्योंकि हम मानने वाले ही नहीं है. वी ओनली वांट कि हमारी बात मानी जाए. ये ऐसे तो नहीं होता. अब आप पश्तूनों के साथ जो कर रहे हैं और बलोचों के साथ कर रहे हैं इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान. अभी भी अगर ये अकल कर लें तो मेरे जैसे लोग अब भी चाहते हैं पाकिस्तान एक फंक्शनिंग स्टेट हो जाए जिसमें इस किस्म के झगड़े ना हो. बट व्हाट कैन आई डू? सर आपकी अभी रिसेंटली टॉक मैंने सुनी बलोचिस्तान कनंड्रम के नाम से, तो उसमें आपने काफी हाईलाइट किया और हमारे स्टूडेंट्स के पास भी अब ढेर सारा मटेरियल आ गया है कि वो जो है ना कहीं से स्टार्ट करें आपकी बुक्स रीड करना और खुद भी रिसर्च करना. किंजा एक और क्वेश्चन लेके आई है. किंजा आप क्वेश्चन कीजिए. जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपको किस बात ने ट्रिगर किया, किस बात ने इंट्रीग किया कि आप अपनी रिसर्च करें और आप नॉर्म्स जो है जिस तरह के हम पढ़ते आए हैं बचपन से उसके खिलाफ या उससे अपोजिट आप एक रियल फेस सबके सामने लाएं आप, क्योंकि आई नो दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि मतलब इतना आसान काम तो नहीं है. आपको थ्रेट्स भी डेली बेसिस पे मिलते ही होंगे, तो आपको मतलब किस चीज ने इंट्रीग किया कि मतलब आप भी लाइक नॉर्मल लोगों की तरह एक नॉर्म्स को एक्सेप्ट करते और आप भी अपनी मतलब बस ठीक है ऐसे ही चलते जाते साथ साथ सबके? बात ये है कि अब मैं अपनी तारीफ कैसे करूं मुझे समझ नहीं आ रही. आई थिंक योर वर्ड्स आर इनफ. होता ये है कि हर दौर में कुछ लोग पागल होते हैं, जुनूनी होते हैं. उनका जुनून अगर नेगेटिव हो तो वो लोगों का सत्यानाश करते फिरते हैं, बम चलाते फिरते हैं, लूटते फिरते हैं. कुछ लोग इन्वेस्ट कर देते हैं कि सच ढूंढना जो है ये कोई बहुत बड़ा कमाल है, वो उस डगर पे चले जाते हैं. मेरी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि सच छुपता कभी नहीं है. 1000 साल लग जाए, 200 साल लग जाए, 2 दिन लग जाए, कभी ना कभी सच आगे आ जाता है. मैं ना होता तो कोई और ये कर लेता, लेकिन आई एम वेरी प्राउड कि मुझे ये चांस मिला है. अब मेरी किताब जो है पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट वो CSS के इम्तिहान में 2 दफा आ चुकी है एज अ क्वेश्चन. तो जाहिर है जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी जो ये पेपर बनाते हैं उनको तो अकल है ना कि ये किताब बड़ी अथॉरिटेटिव है. इसको भी इनाम मिलता अगर ये इतनी, इसे कहते हैं हॉट पोटैटो, उसको हाथ कोई नहीं लगाता. जिसने अगर मुझे दे देते उस पे अपना कोई अवार्ड तो उनका सत्यानाश कर देती है आपकी एस्टेब्लिशमेंट ना. लेकिन एक बात और कहता चलूं, पाकिस्तान कम से कम मेरे लिए हैज नॉट बीन ऑल दैट बैड. मुझे कभी ISI ने तंग नहीं किया. मैं ISI को अगर हो ना कि मैं रॉ का बंदा हूं और मैं ये हूं तो वो मुझे बिल्कुल ना छोड़े, और छोड़ना भी नहीं चाहिए. तो कहीं उनके पास भी विजडम है कि इस किस्म की बातें भी होनी चाहिए, क्योंकि झूठ जो होता है वो अल्टीमेटली आपको नुकसान पहुंचाता है. तो कहीं ना कहीं सच भी तो टॉलरेट होना चाहिए ना. हाँ, मुझे जो थ्रेट्स थ्रूट्स आती हैं वो ये एकेडमिक्स की तरफ से जो उनकी नफरतें हैं ना कि ये काम मैंने कर लिया इन्होंने क्यों नहीं किया, ये इस किस्म का है झगड़ा, अना का झगड़ा. वो मानने को ही नहीं तैयार कि ये किताबें हैं. और मैंने आई विल गिव यू एग्जांपल. अब देखो मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, है 7 साल मैंने अब बाद में जाके 2013 एंड 2019 तक हर विंटर को पढ़ाया भी है. ये जितने वहाँ के ये प्रोफेसर सब मेरे दोस्त हैं. द यंगर वन वो तो गुरु शुरू भी कहते हैं. हमारा जो लफाजी है उसका तो जवाब नहीं है. मेरी किसी किताब पे किसी यूनिवर्सिटी ने कभी सेमिनार नहीं कराया, नेवर. नाउ व्हाट कैन आई से एक्सेप्ट कि वो जो लिखते रहे हैं इन कंपैरिजन टू माय वर्क इट पेल्स आउट इनटू नथिंग. आई एम सॉरी टू से. तो वो क्या करते हैं, बाय नॉट गिविंग मी द प्लेटफॉर्म
तो ये तो साइंस का कमाल है कि आज हम सब बातें कर रहे हैं, इसमें मेरा कमाल कम है। ये अगर इंटरनेट ना आता और ये गूगल शिगलर ना होता तो हाउ कुड आई ब्रेक दिस आइसोलेशन ऑफ माइंड। लेकिन यहाँ पे भी कोई कुदरत का ये असूल है ना कि आइसोलेशन जो है वो कंप्लीट कभी नहीं हो सकती दुनिया के अंदर। सच की बात कोई ना कोई कर देता, मैं ना होता कोई और होता। आई एम कन्विंस्ड अबाउट दैट, बट आई एम वेरी प्लीज्ड इट्स मी। ये एक और बात है, ठीक है। बिल्कुल। सर वैसे यूनिवर्सिटीज के मैंने आपके बहुत सारी वीडियोस देखी। आपको यहाँ पे अभी आगा खान यूनिवर्सिटी 5-6 महीने पहले उनका 6 सेंस फोरम है जो कि बहुत हाई कैलिबर के आप जैसे लोगों के लिए है। और उसके अलावा हबीब यूनिवर्सिटी है लिबरल आर्ट्स की, तो अगर वो कभी आपको इनवाइट करें, मेरी मिसेस वहाँ पे पढ़ाती हैं, तो उन्हें कहें कि आप करें तो मैं आई वुड बी मोर। देखें कराची ने मेरा किया है, मेरी पंजाब वाली किताब भी कराची वालों ने पब्लिश की थी। तो ये महल ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहां पे हैं। और देखो इंपीरियलिज्म भी एक होती है ना, जो रूलिंग ग्रुप होता है वो इग्नोरेंट भी बहुत होता है। मेरी क्लास के अंदर जो बलोच और पख्तून स्टूडेंट से आई फाउंड देम पॉलिटिकली वेरी वेल अवेयर। पंजाबी नहीं, क्योंकि पंजाबी इस स्टेट के मेन बेनिफिशियरी है ना। तो बेनिफिशियरी जो है वो तो क्रिटिकली नहीं ना देखता। तो ठीक है, कराची में हुआ है, इस्लामाबाद में भी एक हो चुका है, लेकिन जो मेरा होम टाउन है वहां पे भी, हाँ, लम्स के एक बुक क्लब ने और पता नहीं उन्होंने अरेंज किया है। मगर जो उनके बड़े बड़े नाम हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ये वो जो मेरे कुलीग थे, नन ऑफ देम। बल्कि मैंने जब किताब मेरी पब्लिश हुई तो आई इनवाइटेड देम टू राइट रिव्यूज, दे डिडंट इवन आंसर माय ईमेल्स, विच आई थिंक इज वेरी इम्पोलाइट। जब उनकी किताबें आई मैंने उनकी रिव्यू की हैं इन फ्लाइंग कलर्स। लेकिन आई एम नॉट कंप्लेनिंग, मैं कहता हूं हर एक का अपना अपना ज़र्फ है। बिकॉज आई एम टू सिक्योर, आई नो व्हाट आई हैव डन, नोबडी एल्स हैज डन। तो मुझे किसी से खार खाने की जरूरत नहीं ना है। हो सकता है मुझसे कोई बेहतर राइटर होता तो ये कॉम्प्लेक्सेस मेरे होते। सर अभी आपका बहुत जबरदस्त रिव्यू जिना वाली जो आपकी बुक है, इसका अभी आपने रिसेंटली शेयर किया था, वो जो 2 ऑथर्स ने मिलकर लिखा है, तो वो इस तरह का रिव्यू कि उसमें वो हर पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। और आपसे पहले डॉक्टर आयशा जलाल हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो जो कि हमारे सेकुलर तबका भी जो पाकिस्तान का वो यही चाहता है, वो यही देखना चाहता है। लेकिन आपने इतनी ज्यादा कोटेशन से पूरा जो है ना एक, मतलब आपने जगह ही नहीं छोड़ी, आपने कोटेशन के थ्रू बताया कि भाई नहीं, कैसे। और कोई तरीका ही नहीं, और कोई तरीका ही नहीं है। देखिए आयशा जलाल की जो किताब है ना, आपके पास है, वो चेक कर लेना, उनकी बिब्लियोग्राफी और उनकी किताब में द टाइटल ऑफ द बुक इज द सोल स्पोक्समैन, जिना, द मुस्लिम लीग एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट डिड जिना स्पीक। अरे एक स्पीच तो देते ना अपनी सपोर्ट के अंदर कि ही डिडंट वांट पार्टीशन, व्हेन द फैक्ट इज he said from 22nd March 1940 onwards, every time that we want partition, this is the only workable solution. तो इन हालात में आयशा जलाल की जो है ना, ये मैं उसे वैसे माफ करना मुझे कहना ही चाहिए, आई कंसिडर इट इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। लेकिन हाउ कम कि मैंने ये डिस्कवर किया, ये बाकी हिस्टोरियंस को क्यों नहीं समझ आई? जस्ट गो एंड सी व्हाट हैड जिना सेड। तो ये एक कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस भी है, किसी को सूट करता है ना, लेकिन सच के सामने तो कन्वीनियंस की बात नहीं होती, सच तो सच ढूंढता है। तो आयशा जलाल के साथ मैंने कहा कि यार हमारा दोनों की डिस्कशन करा दो। शी इज बैक्ड आउट, ये कह के ही इज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ही इज नॉट अ हिस्टोरियन। तो लोगों ने कहा यार जो फैक्ट्स होते हैं वो ना हिस्ट्री होती है ना वो पॉलिटिकल साइंस होते हैं, हिस्ट्री वो तो होते हैं, तो ये क्या तुम्हारा इल्जाम है? लेकिन व्हाट कैन आई डू, उसके पास और इससे बेहतर आर्गुमेंट कोई नहीं ना है।
हालांकि मैंने अपनी पुरानी किताबों में उसको कोट भी किया है. इफ यू गो थ्रू माई बुक्स इन गुड फेथ, आप होता ही है कि स्कॉलर्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए यही सोचते हैं कि इसने सीरियस काम किया है तो उसको फॉलो भी करते हैं. एक गुड फेथ होती है. सो until I realized, जब मैंने जिना पे काम शुरू किया and I went through Jinnah's speeches, I was astounded. Of course, I had a suspicion. देखिए, रिसर्च वहां ही शुरू होती है जहां पे एग्जिस्टिंग लिटरेचर आपकी क्यूरोसिटी को पूरा ना कर रहा हो. Then you start questioning. So I had always this question: how come when everything seems to point out कि कांग्रेस आखिर तक कोशिश करती रही कि पार्टीशन ना हो, ये एक आर्गुमेंट है कि जिन्ना साहब तो चाहते नहीं थे. बट until I had looked at the record, I was in no position to express an opinion. Now I have done, and she has no way of meeting this intellectually, academically. नहीं है. तो मैं समझता हूँ वो बहुत ज्यादती उसने की. अगर वो ऐसा थोड़ी सी भी अकल है, 1-2 स्पीचेस भी दे देती ना किधरी, तो बच जाती. यार, एक बंदे की पूरी स्पीचेस सारी जिंदगी की एक भी आपने नहीं दी, एंड द टाइटल इज द सोल स्पोक्समैन. स्पीकिंग अंग्रेजी का लफ्ज है, वो को मुंह से कोई निकला क्या था, एक तो कोट कर देती, कहीं भी पूरी किताब के अंदर नहीं है. मैंने तो इससे पहले इनको क्यों, बिकॉज दे research is when you think that the existing things in the laboratory or in the whatever is not satisfactory. वहां से रिसर्च शुरू होती है. So I've done it. Excellent sir, excellent. ऐसे ही बिल्कुल. हाँ जी, बिल्कुल. शायद वो नेक्स्ट एडिशन जो उनकी बुक का हो तो उसमें शायद हम कुछ देखें, लेकिन आपने सर कुछ जगह ही नहीं छोड़ी. अच्छा, ये आयदा है, ये एक क्वेश्चन आपसे करना चाह रही थी. आयदा, आप आइए. हाँ जी, बोले. ओके सर, मुझे एक क्वेश्चन ये है कि लाइक पूरी इस डिस्कशन के बाद जो हमने हिस्ट्री पर की और क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, तो इसमें जो है अभी जो हमारी लाइक टुडे जो हमारा है, ये भी तो एट सम पॉइंट किसी के लिए हिस्ट्री होगा. तो क्या एज ए इंडिविजुअल, एज ए पाकिस्तानी इंडिविजुअल, हम लोग कोई इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं बेटरमेंट के लिए, और अगर नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करें? इस हवाले से मुझे क्वेश्चन. देखिए, हर बंदे के एक होता है कि आपके पास चॉइस होती है ऑफ डूइंग गुड और नॉट डूइंग गुड, ठीक है ना. तो जिस भी पोजीशन में आप हैं, आप उसके अंदर भी, मसलन आपके प्रोफेसर इज एनकरेजिंग यू टू थिंक, लुक एट. अब ये बाकी बच्चों को नहीं ये चांस मिलता. वहां पे तो टीचर आते हैं जो उन्होंने 40 साल पहले नोट बनाए होते हैं, उसी की बुनियाद पे लेक्चर दिया और चले गए, और उसी की बुनियाद पे पेपर भी चेक कर दिए. हाँ जी. सो यू आर लकी यू हैव अ टीचर हु वांट्स यू टू लुक एट ऑल्टरनेटिव ओपिनियंस है. तो इसको आप आगे अपने सर्कल्स में शेयर कर सकती हैं. मे बी यू बिकम एन एकेडमिक, यू कैन देन, तो या आप कोई खुद ऐसी स्कॉलर बन जाएं जहां फिर आपकी किताबें लोग पढ़ें. मगर आप तो साइंस की स्टूडेंट है ना. आप किसी तरीके से ये कर दें, कहा जाता है कि पाकिस्तान, एक दफा वो लाहौर के अंदर एक जगह है नीला गुम्बद पुरानी, जहां पे चिक्कड़ छोले कहते हैं, वो पुराने किस्म के वो मिलते हैं खाने को. तो फिजिक्स डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मैं वहां चला गया. वहां पे 2-3 लड़कियां भी थी प्रोफेसर टाइप. अब मुझे ना समझ ना आई कि मैं बात इनसे क्या करूं. तो मैंने कहा, आप पढ़ाती हैं ये, तो क्या देखे ना, फिजिक्स की वजह से सारी दुनिया और बाइबल का जो है वो खत्म हुआ था. न्यूटन, कोपरनिकस, उन्होंने सारी दुनिया बदल दी. और उसके बाद डार्विन ने आके ये 7 दिन में ये दुनिया बनी और ये हुआ, क्रिएशनिज्म को खत्म कर दिया. तो हाउ डू यू डील विथ योर फिजिक्स? तो कहते हैं, नहीं जी, हमें तो हुक्म है कि जो कुरान के अंदर है वो आप कहें कि ये दुरुस्त है, और कहें ये भी ऑल्टरनेटिव थियरीज है. तो दैट एंडेड द होल डिस्कशन. यानी फिजिक्स इज द
science which changed the world primarily. Then came the chemists and the others. लेकिन हमारे यहाँ तो यही है, वो कहते हैं, अब पता नहीं ये सच है या नहीं, कहते हैं कि आप बताएं कि अल्लाह वांट्स पता नहीं H2O कंबाइन हो और ये पानी बने. 2 particles of hydrogen and 1 particle of oxygen leads to water. Not because of that, but Allah so wishes. मैं एक और केस आपको सुना दूं, because in थोड़ा सा I'm in a mood to relax as well. एक प्रोफेसर साहब ने मुझे फैसलाबाद से अपना आर्टिकल भेज दिया कि सर जरा देखो तो सही. वो था कि द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द सब कॉन्टिनेंट. तो उन्होंने शुरू किया कि क्रिश्चियनिटी केम टू द सब कॉन्टिनेंट विद अलेक्जेंडर द ग्रेट, और ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ अ यूनिवर्सिटी या कम से कम कॉलेज जरूर. I couldn't believe it, because Jesus was born, I think, 324 years later than Alexander. Alexander तो ग्रीक मैसेडोनियन था. तो मैंने उन्हें लिखा, बात करो यार, देखो ये तुम्हें अलेक्जेंडर क्रिश्चियन नाम लगता है लेकिन he was not a Christian. वो तो एक पैगन था जो उनकी ग्रीक बिलीफ है. तो ये आप मत करें. बाकी उनकी बात मुनासिब थी. कोई 3 महीने के बाद उन्होंने छपवा दिया वो, और उसमें वही जो हमारा फॉर्मूला है, एवरीबॉडी, आई थिंक इवन यू आर फोर्स्ड टू फॉलो इट, कि अल्हम्दुलिल्लाह और पता नहीं ये 3-4 अल्लाह के फजल व करम से ये वो मैंने ये पास कर लिया, ये है वो. कभी कभी लोग कह देते हैं मेरे माँ बाप की भी दुआएं, वो इतना होता है, लेकिन अल्लाह वाला पूरा ये जो है ना फॉर्मूला, ये सब होता है. तो मुझे भी उन्होंने भेज दिया. वहां पे कहीं नहीं लिखा कि इश्तियाक अहमद रेड माई बुक, और ये आप कह सकते हैं. तो बाद में मैंने कहा यार नेक्स्ट टाइम अगर तुमने पेपर चेक करवाना हो ना अपना, तो अल्लाह मियाँ को भेजना, मुझे ना भेजना. ये नॉनसेंस है ना, कि जो एक्चुअली जिसने तुम्हारी मदद की है, तुम्हारे बचा लिया है, सपोज ये पेपर ये कहीं गलती से पब्लिश हो जाता, हो सकता है एडिटर भी नहीं बेवकूफ है, उसको पता ही नहीं कि अलेक्जेंडर नाम शायद क्रिश्चियंस का है, लेकिन बाद में बना है. अलेक्जेंडर वाज अ मैसेडोनियन, lived 300-400 years before Jesus was even born. तो ये तो हाल है पाकिस्तान का. What can you do? सत्यानाश कर दिया. Educationally, academically, we are at the lowest ebb. अब साइंस के अंदर इन्होंने जो, और मेरा दोस्त है, he is such a close friend of mine, शफकत महमूद जो मिनिस्टर है, और पुराने जमाने में हमारी तरह ये लेफ्टिस्ट होता था, उसके जरिए इन्होंने ये किया है कि महल पूरा कुरान शरीफ लोगों को हिफज करना पड़ेगा, या कम से कम समझना पड़ेगा हदीस शरीफ, और उस पर एग्जाम भी होंगे. यार इफ पीपल कुड बिकम बेटर बाय जस्ट डूइंग दिस, आई वुड हैव नो ऑब्जेक्शंस. लेकिन दुनिया की कहीं भी इस चीज को नजर नहीं आता कि ये करने से होगा ये कि रट्टाबाजी का एक और आर्ट सीखना पड़ेगा इम्तिहान पास करने के लिए. As an engineer, as a doctor, as a scientist and economist, none of these Islamic things will help you. They may help you become a good human being, but उसके लिए इम्तिहान में लाने की क्या जरूरत है? घर में फैमिली नहीं पढ़ा सकती. ये ज्यादा इम्पोज करना, this is cheap popularity, and this is so harmful to Pakistan. आप देखें दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर हमने देखा है, ब्रिटेन के अंदर भी स्टडीज है, जो इमिग्रेंट्स बच्चे हैं ना पाकिस्तानी हमेशा एट द बॉटम होते हैं, हमेशा इंडियंस और बांग्लादेशी आपसे आगे होते हैं. क्या उनके अंदर कोई इंटेलिजेंस आपसे ज्यादा है? आई डोंट नो. आप मैं कह रहा हूँ आप जाके चेक कर लें, दे आर ऑलवेज एट द बॉटम. क्योंकि जहां पे आपको इतना डॉगमा, वो पंजाबी का एक शेर है बुल्ले शाह दा, जिसके ऊपर ये एक्चुअली अमल करते हैं. तेनू इको अल्फ दरकार इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार, कि जहां अल्लाह है बस अल्लाह की जरूरत है और तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं थी. हालांकि बुल्ले शाह ने ये तंजिया कहा था
कि मौलवी जो हैं ये इल्म के दुश्मन हैं, वो ये कह रहे थे, लेकिन ये अमलन यही करते हैं, तेनू इको लफ दरकार इल्मो बस करी हो यार, तो ये पढ़ना चाहते ही नहीं। फिजिक्स में अगर आप ये पढ़ाएंगे कि अल्लाह की मर्जी से ये होता है वो होता है, तो फिजिक्स पढ़ाने की तो जरूरत ही कोई नहीं है, बिकॉज साइंस बेसिकली इज cause and effect. For everything which happens, there is a cause, and that cause is material cause. Material things cause. There is no scope for miracles. There is no scope for any intervention other than the laws of physics. आप में से फिजिक्स भी पढ़ते हैं कुछ? सर ये सारे फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं मेजॉरिटी जो है, और फिर हाँ, वही साइंस के स्टूडेंट। जी सर। हाँ, तो आपकी सारी साइंस जो है उसके अंदर रिलीजन का क्या रोल है? जीरो, नथिंग। जी सर, हमारा एक कलेक्टिव बुक रीडिंग ग्रुप है ना, तो उसमें सोफीज वर्ल्ड में हम यही चीजें देख रहे थे कि 700 BC से शुरू हुआ कि कैसे आप मैथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती थी, फिर ग्रीक फिलोसफर्स आए जिन्होंने नेचुरल एक्सप्लेनेशन दी कि आप बिल्कुल गॉड पे बिलीव करें, आप नमाजें पढ़े, सब कुछ करें, क्योंकि हमारी पर्सनल है, वो पर्सनल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अभी हमारे भी ग्रुप के अंदर मुस्लिम्स भी हैं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, तो हमारी जो क्लास भी और हमारे जो इंस्टीट्यूट्स भी हैं, हमेशा उन्होंने प्रोग्रेसिव ही सोच की बात की है। तो ये मतलब आहिस्ता आहिस्ता सर हो रहा है। तो और आप जैसे लोग हमें इनलाइटन करेंगे तो हम सीखेंगे। अभी आपने क्वेश्चंस की क्वालिटी से भी देखा होगा कि हम बिल्कुल, मतलब मैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम बिल्कुल जीरो पे हैं। आज तो मजा इतना आ रहा है कि मेरा वो पुराना नशा जो है ना वो छा रहा है मेरे पे। ऑनेस्टली, none of the students have asked a stupid question. ये in itself is a great thing, and I had to be very alert to answer them. मैंने तो बहुत enjoy किया यार। ये आप वीडियो जो है ना रिकॉर्ड करके मुझे भेज दें। जी सर, जी सर, बिल्कुल भेज देंगे, वो मैं अपनी YouTube पे शेयर कर दूं आपकी इजाजत से? सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने, अच्छा, दो तरीके हैं, वी ट्रांसफर के जरिए भी आप फ्री भेज सकते हैं, या गूगल ड्राइव। ठीक है सर, उसमें आप भेजेंगे ना तो फ्री आप मेरे ईमेल के एड्रेस पे भेज दें। जी सर, मैं बिल्कुल ये कर देता हूँ। और सर ये मैं फिर अभी फॉर्मली इस सेशन को कंक्लूड करता हूँ। ये हमारे स्टूडेंट्स ये चाह रहे थे कि एक यादगार सी एक पिक्चर आ जाए, तो ये सारे फ्रेम में आ गए। तो सर अब मैं फॉर्मली इसको कंक्लूड करता हूँ कि आई हैव हर्ड नथिंग बट प्रेज फ्रॉम ऑल हु अटेंडेड द सेशन, एंड वेरी राइटफुली सो. We want to tell you how much we enjoyed this meeting. We have been reading a lot about history of our state, and your illustrated talk made it alive for us. It was very thoughtful of you to add personal observations to this meeting. Thank you very much for an enlightening and stimulating talk. Sir, on behalf of everyone here today, from my fiction book club and other students, thank you for taking the time to speak to us. We are absolutely honored to have you here. Let me take this opportunity to express my very great joy in having talked with you, interacted with your students, and in the process enriched myself as a person always willing to learn. This has been a unique experience, and I wish all of you the very best in your life. Thank you so much. Thank you very much, sir. Now I am concluding this meeting. So I will press end meeting for all, and it will stop everything. So don't be surprised for that. Thank you very much, sir. Thank you.